का वचन अगर आपने सच में पूरी आत्मा से ग्रहण किया, if you receive this word that I'm bringing today with all of your spirit, कोई भी नरक की इतनी मोटी चेन नहीं जो आपको बांध सकेगी आज के बाद। there is no chain in hell that is thick enough to bind you after today. और जो वचन आज का है वो केवल आपके लिए नहीं, आपके बच्चे और आपके पोतों के लिए है। And this word today is not just for you, but for your children and your grandchildren as well. आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। You all can be seated. परमेश्वर पिता, हम आपके पास प्रभु यीशु मसीह के नाम में आते हैं। Father God, we come before you in the name of our Lord Jesus. हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। We thank you for your great name. हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुना, We thank you that you have chosen us. अपने लहू से हमें खरीदा, You have bought us with your blood, बेटा और बेटी बनाया made us your sons and daughters, और अपना अधिकार हमें दिया। and you have given us your authority. पवित्र आत्मा जी, Dear Holy Spirit, आज हमारी आंखों को खोल दे open our eyes today, Lord, कि हम सारी धार्मिक शिक्षाओं से निकलकर तेरे राज्य की बातों को समझ सके। that we would come out of every religious teaching and truly understand the things of your kingdom. आप सत्य के आत्मा हैं, You are the Spirit of truth. आप हमारे शिक्षक हैं पवित्र आत्मा, You are our teacher, Holy आप Spirit. हमारे सहायक हैं। You are our helper, Lord. आज का वचन Today's word, हमारे हृदय में बोया जाएगा let it be sown into our hearts और 100 गुना फल लेकर आएगा, and let it bring forth 100-fold यीशु के harvest. नाम में। In Jesus' name. अगर आप विश्वास करते हो तो एक ऊंचा आमेन If you बोलो। believe, say aloud, Amen. आमेन, हालेलुया। एक वचन मैं पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 16वीं आयत। Revelation chapter 1 verse 16. ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये वचन है। This verse is about the Lord Jesus. वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था He had in his right hand the 7 stars. और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। Out of his mouth went a sharp 2-edged sword. उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। Out of his mouth went a sharp 2-edged sword. कभी आपने सोचा है कि यीशु के हाथ में 2-धारी तलवार क्यों नहीं है? Have you ever thought, why does Jesus not have the 2-edged sword in his hand? इसीलिए आज ध्यान से सुनिएगा। This is why I want you to hear carefully today. ओके, 2-धारी तलवार कहां से निकल रही है? Where is the 2-edged sword coming out of? प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकल From the रही है। mouth of the Lord Jesus. स्वॉर्ड या तलवार क्यों दी जाती है किसी को? Why is a sword given to someone? तलवार अब तो गन्स हैं, मगर पहले जब लड़ाई होती थी तो तलवार लेकर लड़ाई करने जाया जाता था। We have guns nowadays, but back in the day when there was a war, they would take swords and go to fight. अगर तलवार है तो इसका मतलब एक लड़ाई है, If there is a sword, that means there is a fight. और अगर लड़ाई है तो उसके लिए एक हथियार है। And if there is a fight, then there is a weapon that is designated for it. बाकी जगह कई लोग हाथों में तलवार लेते हैं, मसीह के लोग हाथों में तलवार नहीं लेते। In different places, the people they take swords in their hands, but believers, we don't take the swords in our hand. नो, हम एक अलग तरह की तलवार दी गई है। We have been given a different kind of a sword. और ये जो तलवार है, And this sword, इसकी सामर्थ जो शारीरिक 1 करोड़ तलवारें हैं उससे भी ज्यादा है। the power of this sword is greater than 1 crore physical swords. मगर प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे मसीहों को नहीं आता ये तलवार कैसे चलानी है। But the problem is many Christians, many believers do not know how to use this sword. अगर किसी के घर में बहुत तेज 2-धारी तलवार है और एक बच्चा उस तलवार के पास जाएगा तो वो क्या करेगा? वो अपने को लहूलुहान कर लेगा। If somebody has a sharp 2-edged sword in their house and a child goes near it, the child will most likely harm himself. ओके, ऐसे ही आज कितने विश्वासी हैं जो कलीसिया नहीं जाते, खुद बाइबल पढ़ते हैं
मगर क्योंकि एक ऐसी मिनिस्ट्री के अधीन नहीं जिनको परमेश्वर ने बुलाया है, तो उससे अपने को भी काटते हैं और दूसरों को भी काटते हैं। Similarly, there are so many believers today that sit home, they don't go to any church. वो They are- अपने इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं, यूट्यूब में जाते हैं, फिर उल्टी सीधी बातें करते हैं। They don't go to any church, not under any ministry which has been called to teach the word. So then they take out their own interpretation and they harm themselves and they जो harm others. तलवार शैतान के विरोध चलानी थी, वो तलवार भाई बहनों के विरोध में चलाते हैं। The sword that was given to them to use against the devil, they use it against brothers and sisters. इसीलिए परमेश्वर ने अपनी देह में टीचर्स रखे हैं। This is why God has kept teachers in his body. ओके, आमेन। Amen. इसीलिए 5-fold मिनिस्ट्री रखी है। This is why God has kept this fivefold ministry. तो अब मैं आपके साथ कुछ बहुत जरूरी आज सिखाता हूं और मैं चाहता हूं आप ध्यान से इस बात को सुनिएगा। So I want to teach you something very important and I want you to hear this intently. यीशु के मुंह से क्या आ रही थी? What was proceeding from Jesus' mouth? शार्प से शार्प, यानी पैनी टू एज्ड स्वॉर्ड। एक तेज दो धारी तलवार यीशु के मुंह से निकल रही थी। तेज दो धारी तलवार यीशु के मुंह से बाहर आ रही थी। A sharp two-edged sword was coming out of his mouth. और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर तलवार है तो इसका मतलब क्या है? क्या है? एक लड़ाई है। और बाइबल हमें कहती है हम एक आत्मिक मल्लयुद्ध के बीच में हैं। And I told you, if there's a sword, that means there's a battle. And the Bible tells us you are in the middle of a warfare. ओके, Of a, जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था तो कई बच्चे वॉर के बीच में पैदा हुए। when World War II was happening, some children were born in the midst of the World War. ओके, और कई देश ऐसे हैं जैसे स्विट्जरलैंड है और भी बहुत सारी जगह हैं जहां पे हर किसी मेल जो मर्द है, कई जगह तो फीमेल्स भी, इजराइल में फीमेल्स भी हैं, मगर जहां पे हर किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग में जाना पड़ता है क्योंकि वहां लगातार वॉर चल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी व्यक्ति मिलिट्री ज्वाइन ना करे, ये पॉसिबल नहीं है। रूल है, अगर आप के देश में लड़ाई चल रही है तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको हथियार चलाना आना पड़ेगा। And there are some nations like Sweden where every male has to join the army and get trained to fight war if there's ever a war that breaks out. Countries like Israel, they both females and males they take training. मेरे पास आपके लिए एक न्यूज है। I have a और news. न्यूज ये है कि you were born in the midst of a war. आप एक लड़ाई के बीच में पैदा हुए हैं। जब आप मसीह में पैदा हुए तो आप एक लड़ाई के बीच में पैदा हुए। When you were born in Christ, you were born in the middle of a war. सो क्यूट मसीह बन के नहीं जी सकते। You cannot live as a cute Christian. मार देगा शैतान समय से पहले। The devil will kill before time. तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, So you will need to take training. आपको मसीह में बढ़ना पड़ेगा, You will have to grow in Christ. आपको सीखना पड़ेगा तलवार कैसे चलाते हैं, You will have to learn how to और use your खुद sword. सीख के फिर और भाई बहनों को भी सिखाना पड़ेगा। And after you master it, you have to teach your brothers and sisters as well. ओके, सो इफिशियंस 6 में बताता है कि हम एक आत्मिक मल्लयुद्ध के अंदर हैं। Ephesians 6 teaches us that we are in the middle of a war. और बाइबल कहती है इसीलिए अपने सारे जो कवच हैं, जो आत्मिक हथियार हैं, वो पहन लो। And this is why the Bible says, put on the whole armor of God. क्यों पहन लो कवच को? Why should you put on the whole armor? क्योंकि आप एक बोलो लड़ाई के बीच में हैं। Because you're in the middle of a warfare. इसीलिए यहाँ सत्संग सुनने नहीं आ रहे हो आप। So you've not come here to hear a teaching. फिर से बोल रहा हूँ, सत्संग सुनने नहीं आते हो संडे को, योद्धा बनने आते हो संडे को। You don't come here to hear a religious teaching. You come here to become a champion, a warrior. ओके, सो अब इफिसियों 6:17 में हम देखेंगे, Ephesians 6:17. एंड टेक द हेलमेट ऑफ सैल्वेशन उद्धार का टोप एंड द सोर्ड ऑफ द स्पिरिट। और आत्मा की तलवार को ले लो. आत्मा की तलवार को ले लो। Take this sword of the spirit. बाइबल कह रही है आत्मा की तलवार ऑप्शन नहीं है। The Bible is saying, take the sword of the spirit. It's not an option. पकड़ना पड़ेगा तलवार को, You will have to hold the sword. सीखना पड़ेगा चलाना। You'll have to learn to use it.
ये शारीरिक तलवार नहीं जो हाथों से उठाई जाती है, ये आत्मा की तलवार है, ये मुंह से निकलती है. This is not a physical sword you can carry in your hands. This is the sword of the Spirit that comes out of your mouth. यीशु के कहां से निकल रही थी तलवार? Where was the sword coming मुंह out से of? निकल रही थी. Out of Jesus' mouth. उसकी आर्मी में आप हो, आपकी तलवार कहां से निकलेगी? मुंह से निकलेगी. You are in his army, so where will your sword come out of your mouth? पौलुस इसमें साफ बता देता है, हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है भैया कि आयतें लेके एक दूसरे को हम लोग घायल करें. Paul tells clearly we are not fighting against flesh and blood that we take verses and start to wound each ये other. फरीसी की आत्मा है. एक फरीसी की आत्मा बाइबल को लेकर अपने भाइयों पे तलवार मारते हैं. That is the spirit of a Pharisee. Pharisees take up verses from the word and they wound their brothers and sisters. पौलुस कह रहा है हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है. But Paul is saying our fight is not with flesh and blood. ओके मगर किससे है? But who do we fight? प्रधानताओं से, दुष्ट आत्माओं से. ये वो जो स्पिरिचुअल रेल में है, जो आत्मिक जहां में दुष्ट आत्मा है, उनसे लगातार आपकी एक लड़ाई है. Against principalities and powers, those spiritual powers, we have a fight with them. और आप अनजान नहीं रह सकते. And you cannot stay ignorant. होशाया 4:6 में परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने के कारण क्या हुआ? नाश हो गई. Hosea 4:6 it says, my people are destroyed because of lack of my knowledge. सो क्यों हो रहे हैं आज मसीह लोग नाश? इसलिए कि परमेश्वर चाहता है वो नाश हो? कि कई लोग सिखाते हैं अरे बीमारी आई तो भी प्रभु ने भेजी. अरे परमेश्वर कह रहा है मेरे लोग अगर नाश हो रहे हैं तो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्हें मेरा ज्ञान नहीं है. Why are God's people being destroyed? Is God sending sickness? Because some people say if sickness came, it's from God. No, but God is saying my people are perishing because they have no knowledge. They don't have my knowledge. सोचो, मैं चाहता हूं आप एक आर्मी कैंप के हिसाब से सोचो. इंटेंस लड़ाई चल रही है. Now think it through an army और camp. कोई भी आर्मी में किसी बंदे को गन देकर उसको बॉर्डर पे नहीं भेज देते. Think it through an army camp that in the middle of intense warfare, nobody will just hand them a gun and send them to the border. कई लोग हमें बोलते हैं आप चर्च में क्यों बुलाते हैं लोगों को? उनको बोलो बाहर जाके प्रचार करें. अरे पहले ट्रेनिंग देंगे या नहीं देंगे, या भेज देंगे बैटलफील्ड में? Some people say, why are you calling people to the church? Why don't you send them out to preach? First, will we train them or not? और इसीलिए मैं इतने मसीहों से बाहर जाके प्रचार कर रहे हैं रोज, जब घर में आते हैं तो अपनी खुद की वाट लगी रखी है ऊपर से नीचे तक. And this is why there are so many believers. They are going out and preaching every day, but when they come back home, their life is miserable inside the house. क्यों? क्योंकि लड़ाई से पहले ट्रेनिंग है. बोलो लड़ाई से पहले ट्रेनिंग है. Because there is training before the war. अब सोचो ट्रेनिंग चल रही है और एक बंदा है, imagine- जब सब ट्रेनिंग चल रही है वो ध्यान नहीं दे रहा, वो Imagine- अपने मस्ती कर रहा है अपनी, Imagine फोन में training- लगा हुआ है. Training is going on and there's one person not paying attention on his phone, distracted. जब उनका इंस्ट्रक्टर सिखा रहा है, देखो ये गन है, इसको आप ऐसे करोगे, ये लॉक होता है, ग्रेनेड को ऐसे निकालोगे, पिन ऐसे निकलती है, वो ध्यान ही नहीं दे रहा. When the instructor is teaching them, this is your gun, this is how you put off the safety, this is how वो the grenade is- कैजुअल है उसका एटीट्यूड. He's कैसा just- है? हाँ क्या हो गया तो? He's just casual, doesn't care. और He's फिर like, लड़ाई में जब गया, अब ग्रेनेड से पिन खुली नहीं रही, now when he goes to the war, he doesn't know how to take the pin out of the grenade. गन अनलॉक ही नहीं हो रही. He's not able to क्यों? unlock his क्योंकि gun भाई साहब का ध्यान कहीं और था जब ट्रेनिंग हो रही थी. because he was distracted during the training. सबसे पहले कौन मरेगा लड़ाई में? Who will die first in that ये war? This guy. अगर अंत तक जीवन जीना है तो उस प्रशिक्षण को हल्का मत जानो जो मसीह में तुम्हारे लिए रखा गया है. If you want to live a victorious life till the end, do not despise the training that has been kept for you in Christ. उस वचन को हल्का मत जानो जो हर रविवार को परमेश्वर का आत्मा आपके और आपके बच्चों के लिए भेजता है. Do not despise the word that the Spirit of God sends for you and for your children every Sunday. ये कोई सत्संग नहीं है, This is no religious ये gathering. आत्मिक प्रशिक्षण है योद्धा बनने का This मसीह is में. spiritual training to make you warriors in Christ. ओके सो अब बाइबल हमें कह रही है क्योंकि हम एक लड़ाई में, और सारा कवच है, मेरे पास वो समय नहीं है, आज मैं आपको ऑफेंसिव लड़ाई सिखा रहा हूं. Now the द Bible says, बेस्ट डिफेंस इज ऑफेंस. the Bible says we have the whole armor, but I'm not talking about defensive today. I'm talking about offensive. The best, सबसे अच्छा जो बचाव है वो हमला करना है. कोई आया आपके घर में मारने के लिए, आपको पहला मार दिया ना आपने एक पंच, पहला अटैक जब आपने कर दिया तो यू आर ऑन द विनिंग साइड. If someone enters your house trying to harm you, if you give them the first blow, you've already won the battle.
सो जो हमारे कवच है वो पूरा डिफेंसिव कवच है। Our entire- उद्धार का टोप, धार्मिकता की झीलम, सत्य की बेल्ट, सुसमाचार के जूते, ये सब क्या है? ये कवच है। Our entire armor is protective. The helmet of salvation, breastplate of righteousness, the belt of truth, the shoes of gospel, they are to protect you. अब सोचो आप लड़ाई में चले गए केवल कवच पहन के, मगर कोई हथियार नहीं है, तो आप मार खा रहे, अब लग नहीं रही आपको, मगर मार तो खा रहे हो। Now imagine you go to the war wearing your protective gear, your armor, you do not have any sword, any offensive weapon with you, so you will be just taking hits upon hits. तब तक मार खाते रहोगे जब तक हथियार नहीं उठाओगे। You will keep on taking hits until you take up your weapon. और बाइबल कहती है हमारे पास भी हथियार हैं। And the Bible says we also have weapons. हमारे पास आत्मा की चोखी और पैनी दो धारी तलवार है। We have the sharp two-edged sword of the Spirit. वही तलवार जो मेरे यीशु के मुंह से निकलती है, वही तलवार उसने आपके और मेरे मुंह में भी डाली है। The same sword that comes out of our Lord Jesus' mouth, the same sword God has given to us, to you and me. अलग नहीं, It's not a different sword. वही तलवार दी है। It's the same sword. आपने देखा है, अच्छा मैं फिर से आपसे एक उदाहरण, यहाँ पे कितने लोगों ने गिटार बजाने की कोशिश करी? मुझे हाथ दिखाओ अगर How कभी many people tried to play guitar हाँ, or tried to learn it? मगर बहुत मुश्किल था तो आपने छोड़ दिया। मुझे दिखाओ हाथ। But it was so difficult that you left it. How many people did that? एक व्यक्ति यहाँ पे आ सकता है और बहुत बढ़िया गिटार बजा रहा है, आपको वाह कितनी बढ़िया आवाज निकल रही है इसी गिटार से। One person can come here, play the guitar, and you say, "Wow, what a beautiful sound is coming और out." फिर of एक the guitar." दूसरा व्यक्ति आए और सेम गिटार को पकड़े और से करे झड़ंग भड़ंग झड़ंग भड़ंग। And then another person can come and make absolute nonsense सेम गिटार है from the same guitar. मगर एक प्रशिक्षित है, एक प्रशिक्षित नहीं है। But one is trained and the other is not trained. वही तलवार यीशु ने आपके मुंह में भी दी है। अब आपको सीखना है ये जो तलवार है, हाउ यू कैन यील्ड दिस वेपन, इस हथियार का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो आत्मिक गढ़ों को ढाने के लिए। The same sword the Lord Jesus has now put in your mouth, He has given it to you. And you can learn how to use this sword to bring down strongholds. अगर आपकी लड़ाई हो रही है और आत्मा की तलवार हमारे मुंह से है, If you are in the middle of a warfare and the sword of the Spirit is coming out of our जो mouth, हथियार है वो तलवार है, The तो अब weapon- मुझे बताओ कौन है जो नहीं चाहता कि आप वो तलवार मुंह से निकालो? if your weapon is the Come on, sword, talk to tell me. me, who doesn't want? कौन? शैतान। आज बड़ी शिक्षाएं जो घोषणा का विरोध कर रही है, समझ जाओ ये किसके बच्चे हैं। There are many teachings about don't declare, you should not make declarations. You should understand whose children are these. क्योंकि वही है जो नहीं चाहता कि परमेश्वर का वचन आपके मुंह पे हो। Because it is the devil who doesn't want that the word of God will be in your mouth. ओके, आज मैं आपको वचन से दिखाऊंगा, एक नहीं 10 आयतें दूंगा। I will show you from the word, not 1, 10 verses. हम अपनी कोई प्रीचिंग नहीं कर रहे इस जगह में, We are not preaching our own message here. मगर जो आत्मा की बातें हैं, बाइबल कहती है जो शारीरिक मसीह है ना, जो शारीरिक ईसाई हैं, उनको समझ में नहीं आएंगी ये बातें, क्योंकि these things are spiritually discerned। But the things of the Spirit cannot वो be लड़ते discerned. हैं, कहते हैं ये न्यू एज टीचिंग दे रहे हैं, ये वचन की घोषणा कर रहे हैं। अरे तो किसकी घोषणा कर रहे हैं? वचन, परमेश्वर की वचन की घोषणा कर रहे हैं। They said this is new age teaching, you're declaring the word. What are we declaring? The word of God. ये शैतान से है। They are यानी from the devil. शैतान अब परमेश्वर का वचन लोगों के मुंह में डाल रहा है। वाह, हालेलुया। They said this teaching is from the devil. Okay, so now the devil is putting God's word in people's mouth. Wow. मतलब वो कह रहा है ये लो तलवार और मारो मुझे। So the devil is saying, take your sword and hit me. सोचो ध्यान से, कौन है जो नहीं चाहता कि तलवार आपके मुंह पे रहे? धर्मी ईसाई बन के रहो, रीति रिवाज में रहो, क्रिसमस में जाओ, गुड फ्राइडे में जाओ, ईस्टर में जाओ। Think carefully who doesn't want the sword to come out of your mouth. Who would want you to be a religious Christian, do all rituals, go for Christmas, Easter Sunday, do all that. मगर ये टीचिंग नहीं, But don't take this teaching. क्योंकि ये उसका, और अब तो भैया शुरू हो चुका है। इंडिया में बच्चा बच्चा परमेश्वर का वचन की घोषणा कर रहा है। And now it has started. Every child in India will declare the word of और God. ये रुकने वाला नहीं है। And this is not going to stop. हालेलुया। Hallelujah. ओके, अब मैं चाहता हूं आप ध्यान धरकर सुने, अगर किसी को डाउट है ये तो
I want कि you हम to hear. वर्सेस को तोड़ मरोड़ के तो आपको नहीं सिखा रहे. I want you to hear carefully if anybody has a doubt. We are not twisting the word for you. ओके, प्लेन जो बाइबल कहती है मैं केवल वो पढ़ के बताऊंगा, अपना इंटरप्रिटेशन नहीं घुसाएंगे. I will only read what the Bible says. I will not put my interpretation in it. यिर्मयाह 1:9, यिर्मयाह 1:9, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth. यहोवा ने क्या छुआ यिर्मयाह का? कई मसीहों का आज ये छूना जरूरी है कि परमेश्वर उनका मुंह छुए. Many believers have this need that the Lord would touch their mouth today. यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said, behold, I have put my words in your mouth. कहां डाले हैं तेरे? Where has the Lord put his word? कहां डालना चाहता है परमेश्वर अपने वचन को? Where does God want to put his word? हमने लेदर की बुक में डाल दिए. We have put them in a leather book. ये जरूरी है, वरना मुंह में नहीं डाल सकते That's आप. important. पर Otherwise अगर ये लेदर की बुक में ही रहेगा but if it stays in the leather book, तो कई लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो नहीं समझते ना, वो शारीरिक जब ईसाई तो पता करते हैं, दुष्ट आत्माओं के ऊपर ना करते हैं बाइबल, यीशु के नाम से निकल. what some people do is because they are carnal, they don't understand. They take the Bible and they hit the people that are. अरे doing ये good. हथियार नहीं है, आत्मा की तलवार है. आत्मा की आत्मिक हथियार है, शारीरिक नहीं है. This is not the weapon, the sword, the spirit is the weapon. It's not physical. पीटो मत लोगों को बाइबल से. Don't beat people with your Bible. मुंह खोलो और वचन की घोषणा करो. Open your mouth and declare the word. ओके, आप ध्यान से सुनो. Hear carefully. देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं. See, I have this day. क्यों कह रहा है परमेश्वर तेरे मुंह में डाले? ध्यान से सुनो अब आगे. सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है. Why has God put his word in our mouth? It says here, see, I have this day set you over the nations and over the kingdoms. जिन मसीहों के मुंह में परमेश्वर का वचन नहीं है, वो कभी अधिकारी नहीं हो सकते. Believers who do not have the word of God in their mouth, they can never walk in authority. अगर अधिकार में चलना है, अगर अधिकारी की तरह चलना है, तो परमेश्वर के वचन आपके मुंह में होने चाहिए. If you want to walk in authority, the word of God should be in your mouth. ओके, अब ध्यान से सुनो. उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए. To root out and to pull down, to destroy and to throw down, to build and to plant. अब हियर दिस, ये जो परमेश्वर का वचन है ना, इसको बाइबल दो चीजें बोलती है. This word of God, the Bible calls it two things. बाइबल इसको कहती है सीड यानी बीज, और बाइबल कहती है सोर्ड यानी तलवार. It's a seed and a sword. तलवार से जो शैतान की तरफ से उसको नाश कर दो, और जो परमेश्वर के वचन आपकी जिंदगी बनाने वाले हैं, उनको बीजों की तरह अपने हृदय में बो. With the sword, destroy what the devil is bringing against you, and with the seed, plant what the Lord wants to build in your life. ओके, फिर से मैं पढ़ता हूं. मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाला और तुझे जातियों का अधिकारी बनाया है. I have put my word in your mouth and I have made you an authority over nations. क्योंकि कई लोग कहते हैं हमारा काम तो है, हम केवल प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर करेगा. Because some people say our job is to just pray and God will do something. आगे मैं इस पे बहुत टीचिंग बनाने वाला हूं एक, ठीक है. मैं वो करना नहीं चाहता था, पर जब छेड़ता रहेगा कोई तो फिर वचन से बनाना पड़ेगा. I'll give teachings on this. I didn't want to do this, but I'll have to do it. ये सारे लोग कैल्विनिस्ट हैं, आपको पता होना चाहिए. कैल्विनिज्म, You should- कैल्विनिस्ट वो लोग हैं जो मानते हैं जो पृथ्वी पे हो रहा है वो परमेश्वर कर रहा है. You should know all these people are Calvinists, and Calvinists they believe whatever is happening on the earth, God is doing it. और ये एक डिमोनिक डॉक्ट्रिन है. And this is a demonic doctrine. और इस डॉक्ट्रिन की वजह से इतने सारे मसीह लोग मर गए अपने समय से पहले. And because of क्योंकि जो हथियार परमेश्वर ने दिया, उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा काम है, हम केवल भीख मांगेंगे, परमेश्वर को करना है तो करेगा, नहीं करना है तो नहीं करेगा. And because of this demonic doctrine, so many Christians died before their time because they believe that our job is to beg in prayer, and what God will do, He will do. What He will not do, He will not do. अब वो क्या कह रहा है?
मैंने तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी बनाया, उन्हें गिराने और ढा दे। तू गिराएगा, तू ढा देगा। कैसे? मेरे वचन जो तेरे मुंह में है। तू रोपेगा, तू बनाएगा। तू गिराएगा, तू ढा देगा। तू रोपेगा, तू बनाएगा। मैंने तुझे अधिकार दे दिया। अब जो अधिकार मैंने तुझे दिया उसका इस्तेमाल कर। Now God is saying, I have given you over, I have set you, I have made you authority over nations and over kingdoms. How? By putting my word in your mouth, so that you will root out and you will pull down, you will destroy and you will throw down, you will build and you will plant. अब सोचो, अगर एक लड़ाई के बीच में और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे लड़ें, Now think about it. If I'm in the middle of a battle and I don't want my kids to fight, तो मैं उन्हें कभी हथियार नहीं दूंगा। I will never give them weapons. मैं लड़ूंगा हथियार उनके लिए। I will fight with the weapons. मगर अगर मैं अपने बच्चों को हथियार दे रहा हूं, इसका मतलब मैं चाहता हूं मेरे बच्चे भी मेरे साथ उस लड़ाई में योगदान दें। But if I give weapons to my children, that means I want my children to also take part in this war. पौलुस कह रहा है, क्योंकि हम एक आत्मिक मल्लयुद्ध में हैं, आत्मा की तलवार को उठा लो भैया। Paul is saying, because we are in the middle of a warfare, take up the sword of the Spirit. तभी अधिकार ले पाओगे। Only then can you take authority. ओके, सो काट डालने के लिए, To chop them off. दुष्ट आत्माओं के बंधनों को काट सकते हो इस तलवार से जो तुम्हारे मुंह में है। You can chop off the bondages of every demonic spirit through सालों the से sword जो in your mouth. ट्यूमर है, आत्मा की तलवार काट सकती है उन ट्यूमरों को, उस अर्थराइटिस को, उस दिल के दौरे को, उस डिप्रेशन को, जो रात को नींद नहीं आती है उसको। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं और तुझे अधिकारी बनाया है कि तू नाश कर दे, तू काट दे जो शैतान के काम है उन्हें। The word of God has given you power. He has given you the sword so you can cut down every tumor, every cancer, every arthritis, so you can destroy every work of the devil. ओके, मुझे बुरा लगता है बहुत, आजकल इतने सिंपल कई मसीह यूट्यूब में जाते हैं, जो भी सिखाया जाता है I feel so bad. So many believers go to YouTube and gulp every wrong teaching that they see. हाँ जी, हाँ जी, आप सही कह रहे हो। Yes, yes, सब you're right. परमेश्वर करता है। God does everything. Yes. ओके, ये था पहला वचन, ठीक है। This was the first verse. दूसरा, Second verse. यशाया 51 उसका 16, Isaiah 51 verse 16. मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले। I have put my words in your mouth. दूसरी आयत, The second परमेश्वर verse. कह रहा है, मैंने, God is saying, I have. पहले था जेरेमाया, First to Jeremiah he said it. अब परमेश्वर कह रहा है आइजाया से। Now God is saying to Isaiah. ओके, कई लोग ये ना बोलते, अरे वो तो केवल जेरेमाया के लिए वचन था। So that some people may not say this was only for Jeremiah. मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है। I have put my words in your mouth and I have covered you with the shadow of my hand. हिंदी में ना यहाँ पे सही नहीं है ट्रांसलेशन, इट सेज सो दैट आई मे प्लांट द हेवेंस। In English it says ताकि मैं स्वर्गों को बो दूं। मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए कि स्वर्गों को मैं बो सकूं। आप स्वर्ग को बो सकते हो अपने जीवन में उन वचनों के द्वारा जो परमेश्वर ने आपके मुंह में डाले हैं। Amen. I have put my words in your mouth so you can plant heavens on the earth. You can plant heaven by the word of God in your mouth. स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं, There is no sickness in स्वर्ग में heaven. कोई दुष्ट आत्मा का सताव नहीं, There is no demonic स्वर्ग में oppression कोई in heaven. गरीबी नहीं, There is no poverty in स्वर्ग heaven. में कोई कलेश नहीं। There is no strife in अब heaven. इस बात को समझना, जब तक हम पृथ्वी में हैं, So as long यीशु as we मसीह are ने on the कहा earth, गॉस्पेल से जो हमें सताव आएगा वो हमेशा रहेगा, उससे हमारा कोई छुटकारा नहीं है। Jesus said the persecution that comes because of the gospel will remain. There is no redemption from that. मगर कुछ ऐसी चीज हैं जो स्वर्ग में बांधी जा चुकी हैं, जिनको आप पृथ्वी पे बांध सकते हो। But there are some things which have been bound in heaven, so you can bind them on the earth. यानी आप पृथ्वी पे, आप अपने जीवन में स्वर्ग को प्लांट कर सकते हो, बो सकते हो उन वचनों के द्वारा जो परमेश्वर ने आपके मुंह में डाले। सो हर बार इस बात को मैं चाहता हूं, इस थीम को आप ध्यान से सुनना कि वचन कहां पर है? आपके मुंह में। So you can plant heaven on the earth. Remember this theme, by the word that is in your mouth. जब तक मुंह में नहीं है, Unless it's in your mouth, उनकी सामर्थ नहीं निकलेगी। their power will not come out. बढ़िया सा फ्रेम करके लगा दोगे घर में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। If you put a good frame of the word in your house, it will not make any difference. ठीक है, ऑलराइट। चलो तीसरा, Third verse. अब
मूसा की मृत्यु हो गई और यहोशू को एक ऐसे देश में जाना है जहां पर दानव हैं जो उनसे बहुत गुना बड़े हैं हर एक चीज में. Now Moses has died and now Joshua has to lead the people into this land of promise where there are huge giants. जो 10 जासूस थे, जो 12 भेजे गए, उसमें से जो 10 जो उस गोत्र के लीडर्स थे, जब वो वापस आए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बुरी खबर दी और उन्होंने कहा कि हम तो टिड्डियों की तरह थे उनके सामने. Out of the 12 spies that went to spy in the land, when they came back, 10 of them, they gave a bad report and said, we were like grasshoppers in their sight. 10 out of 12, that's 80%. 12 में से 10 लोग, 80% लोग, बुरी खबर लेकर आए. they brought a bad report. दुख की बात यह है, आज भी 80% जो पुलपिट है ना कलीसिया में, वो बुरी खबर का प्रचार कर रहे हैं. The sad thing is 80% of pulpits even today are preaching the bad news. वो 10 जासूस काफी थे 40 लाख इजरायलियों को कब्र में ले जाने के लिए. इसीलिए ध्यान दो किस पुलपिट की आवाज आप सुनते हो. Come on. Those 10 spies were enough to put 40 lakh people into the grave. So therefore carefully hear whose voice you hear. बीमारी आ रही तो ले लो परमेश्वर की तरफ से. Oh, sickness coming, take it because it's from God. मगर ये नहीं बताएंगे ना कि जब उनको आती है तो खुद डॉक्टर के पास जाते हैं, But खुद they क्यों नहीं ले लेते. but they don't tell you when they get sick, they run to the doctor. They don't take the sickness. ध्यान दो Hear carefully क्या सुनते हो. what you hear. जितने इजरायलियों ने उनकी आवाज सुनी, Every Israelite that heard their voice, उन्होंने कहा हम कभी इस कनान के देश में नहीं जा सकते. they said they will never enter the land of Canaan. और बाइबल कहती है वो वहीं विल्डरनेस में मर गए. And the Bible records that all of them, they died in that wilderness. क्या ये परमेश्वर की इच्छा थी Was it God's will? कि 40 लाख इजरायली? तो फिर परमेश्वर धोखा, अगर परमेश्वर की इच्छा थी उन्हें मरुस्थल में मार देना, तो फिर सबसे बड़ा धोखेबाज तो परमेश्वर है. Was it क्योंकि वो God's- उनसे ये कह के उन्हें मिस्र से निकाल के लाया कि मैं तुम्हें कनान में ले जा रहा हूं. Was it God's will to kill them all in the wilderness? If so, then God is the greatest deceiver because He told them that I will bring you out of Egypt and take you into the land of ये promise. कैल्विनिस्ट डॉक्ट्रिन है कि This- जो हो रहा है वो परमेश्वर. बीमारी आ रही है तो ले लो, जो आ रहा है बीमारी तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई है. This is a Calvinist doctrine that if sickness is coming, take it. It has come to teach you something. परमेश्वर तुम्हें नम्र करना चाहते हैं. God कभी wants to बीमार make you आदमी को humble. देखा है? नम्र होते हैं बीमार लोग. Have you ever seen a sick person? Are they humble? बीमार से ज्यादा चिड़चिड़ा कोई नहीं होता. There is no more. Is no that one- true or not? There's no one who's more irritated than a sick person. परमेश्वर अपनी आत्मा और अपने वचन के द्वारा हमें सिखाता है, बीमारियों के द्वारा Come नहीं. on. God teaches us through His Spirit and through His Word, not through sicknesses. ओके. सो अब जोशुआ को जाना है ऐसी जगह जो शारीरिक रूप में इम्पॉसिबल है जाना. Now, Joshua has to go to such a place where it is impossible for them to go physically. तो परमेश्वर क्या करता है? So what the Lord does, परमेश्वर उसको वही चीज दे रहा है जो उसने यिर्मयाह और आइजाया को दी. the Lord gives them the same thing that He gave to Jeremiah and Isaiah. Joshua, this book of the law shall not depart from your mouth. यहोशू, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना उतरे. यहां पे हिंदी बाइबल ने बिंदी लगा दी, ये चित्त नहीं है, मुंह है. Here it's not your aware, it's not your mind, but it's your mouth. मुंह. यहोशू व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुख से रुकने ना पाए लगातार. इसकी क्यों? क्योंकि जब आप लगातार वचन की घोषणा कर रहे हो, आत्मिक जहां में तलवारें निकल रही हैं, आपके मुंह से तलवारें निकल रही हैं. Joshua, this book of the Lord shall not depart from your mouth, because when you are speaking that word of God, there's swords coming out of your mouth in the spirit world. ये कौन सा आयत था? तीसरा. This is the Bible third says verse. out of the mouth of 2 or 3 witnesses a word is established. बाइबल कहती है 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात स्थापित होती है. मगर और गवाही देंगे अभी आपको. We will give you टेंशन more मत. witness. ओके, कि आपको दूसरा कुरिन्थियों 10:3 से 4 हम पढ़ेंगे. 2 Corinthians क्योंकि 10. यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh.
हम लड़ते हैं, We war, बिल्कुल लड़ते हैं, मगर absolutely, शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, but not according to flesh. आत्मा के अनुसार लड़ते हैं. We war according to the Spirit. ओके, हमारी लड़ाई शरीर से नहीं, Our war is not with the flesh. क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं. For the weapons of our warfare are not carnal. इसका मतलब ये नहीं कि हथियार है ही नहीं. That does not mean that we do not have weapons. We have weapons, हमारे पास हथियार हैं, but they are not physical. लेकिन वो शारीरिक नहीं है. You cannot touch them with your hands. You cannot feel them with your body. अपने हाथों से उनको छू नहीं सकते, शरीर से उनको महसूस नहीं कर They are सकते. spiritual. ये आत्मिक है. Now the question comes, अब सवाल ये आता है कि कैसे चलाएं इन हथियारों को? By faith. The question comes, how do we use these weapons? विश्वास के By द्वारा. faith, these weapons get activated. विश्वास के द्वारा ये कार्यशील होते हैं. कितने लोगों को आज समझ में आ रही है जो मैं बात कह रहा हूं? How many people understand what I'm saying? शैतान इसीलिए आपके मुंह से, इसीलिए तो इन टीचिंग्स के विरोध में है शैतान. That's वो why जल जाता है जब मसीह लोग, क्योंकि क्या हो रहा है देख रहे हो ना, लाखों लोग चंगे हो रहे हैं घरों में वचन बोल के. That's why the devil is against these teachings, and he gets roasted when believers start to पागल speak हो गया, the उसको word. समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें. Lakhs of people वो are कह रहे हैं being healed. भैया साउथ कोरिया गया, अब इंडिया भी गया. The devil is saying, I lost South Korea, now अब I इंडिया have भी lost गया. India. I have lost हालेलुया. India. क्योंकि अब धार्मिक मसीह नहीं, आत्मिक मसीह खड़े हो रहे हैं इस देश में. Because not religious but spiritual Christians are rising up in this nation now. हालेलुया. आमेन. अब सुनो, Now here, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं. but mighty in God for pulling down strongholds. Mighty, see, we say in the mighty name of Jesus, क्योंकि हम जानते हैं यीशु का नाम सामर्थी है. हम कहते हैं यीशु के महान नाम में, because we know the name of Jesus is mighty. बाइबल कह रही है as the name of Jesus is mighty, in the same way he has given you weapons that are mighty. जैसे यीशु का नाम सामर्थी है, वैसे ही परमेश्वर ने आपको सामर्थी हथियार दिए हैं. अभी आपने देखा ना, यूएस ने जो एक मिसाइल मारी, वो बंकर डिस्ट्रॉइंग मिसाइल है, वो नीचे जाती है जमीन में, वो क्योंकि बंकर अंदर बना देते हैं, तो उसके लिए भी एक वेपन है. वो मिसाइल अंदर तक जाती है गड्ढा करते हुए और वहां फटती है कि बंकर को नाश कर दे. तो जब शारीरिक ऐसा हथियार हो सकता है, परमेश्वर कह रहा है हमारे पास वो आत्मिक हथियार है जो माइटी है. जहां भी छुपा होगा ना वो शैतान, वहां जाएगा वो तीर और वहां नाश कर देगा उसको. The weapons we have are mighty. Wherever the devil is hiding, the weapons will go there and destroy the devil right where he is. Amen. Let me say it this way, the weapon that we have are the spiritual bunker destroying, that can tear down strongholds in Jesus name. जो हथियार हमारे पास हैं, वो आत्मिक Come on, bunkers को, church. आत्मिक गढ़ों को ढा देने वाले हथियार हैं. आप साधारण लोग नहीं हो, You're not ordinary people. आप परमेश्वर की आर्मी में हो, और यीशु मसीह हमारा कमांडर है, और उसके मुंह से दो धारी तलवार निकलती है, और हमारे मुंह से भी दो धारी तलवार निकलती है. You are in the army of the Lord. Jesus is our commander. Out of his mouth comes a two-edged sword, and also out of our mouth comes the two-edged sword. Amen. Hallelujah. गढ़ों को ढा देने के लिए भैया, गढ़ आसानी से नहीं ढहते, पता है ना आपको. To bring down strongholds, it's not easy to bring down strongholds. You understand? जैसे लोग पहले क्या करते थे, किला बना दे, गढ़ बना देते थे. People would make a fortress in the old days. मगर बाइबल कह रही कितना बड़ा गढ़ बना दे शैतान. आपके पास ऐसे हथियार हैं जो गढ़ों को ढा देंगे. They will demolish ungodly strongholds in Jesus name. But the Bible is saying no matter what stronghold the devil makes, you have such mighty weapons that will bring down every stronghold against you. अरे पुराने टाइम में कई बारी वो पिक्चर होती थी जिसमें वो गन नहीं होती हीरो के पास, वो एक पिक्चर थी तो वो साबुन से गन बना देता है और फिर वो ऐसे करता है गुंडे की तरफ, और वो गर्मी होती है तो आगे से वो गल जाती है. तो हथियार आपके असली हैं या नहीं, शैतान को तो पता है. Whether your weapons are real or not, the devil knows. इसलिए समय है असली हथियार चलाना सीख जाओ. So it's time you learn to use the real weapons.
आमेन। हर किसी के पास है ये हथियार, Each one of us has these weapons. और आपको आइडिया नहीं है कितने पावरफुल ये। लोग कहते हैं पास्टर दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा। अरे कह रहे दुष्ट आत्माओं की पार्टी हो रही होगी अगर उनके किले में 1000 दुष्ट आत्मा होंगी, आपका एक वेपन काफी है पूरे गढ़ों को ढा देने के लिए भैया। Believers are worried about one demonic spirit. The Bible is saying even if there's a fortress, even if there's a stronghold of demons, one weapon that you have been given can bring them down. मगर बात यह है कि कई लोगों ने शैतान पे ज्यादा स्टडी करी है, जो हथियार उनके पास है उस पे स्टडी नहीं करी। But the thing is, some people have studied more on the devil and they have not studied the weapons that they have. अरे ये क्या सिखा रहे हैं, बोलते रहोगे तो हो जाएगा। Oh, what are they teaching? You will keep speaking, it will happen. जी हाँ, Absolutely yes. होगा नहीं, हो रहा है और बहुत बढ़िया हो रहा है। Not that it will happen, but it is happening and it is happening amazingly. मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं और तुझे जाति जातियों के ऊपर अधिकारी नियुक्त किया है कि तू नाश कर दे और काट डाले शैतान के हर एक काम को। I have put my word in your mouth and made you, I have set you above kingdoms and rules so you can destroy every stronghold of the devil. एक चीज जो आर्मी में कभी नहीं हो सकती, One thing that can never happen in the army, और अगर कोई आता भी है ऐसा तो ट्रेनिंग में वो खत्म हो जाती है, वो है विक्टिमहुड। कोई सोल्जर भी and even if it comes, then in the training it gets destroyed. वो victimhood, victim मानसिकता। मेरे साथी गोली मेरी तरफ क्यों आई? Why did the bullet? अरे लड़ाई चल रही है, हर तरफ चल रही है गोली, आप ही की तरफ नहीं चल रही, हर तरफ शैतान गोलियां चला रहा है। It's a war. The enemy is fighting everywhere, not just towards you. Don't make yourself so exclusive. कोई नहीं समझता मेरे साथ क्या हो रहा है। अपने आप को इतना अलग मत कर लो कि nobody understands what happens to me. अरे तुम्हें क्या पता? Oh, you don't know. ये भी शैतान की एक चाल है। This is also devil's trick. चलो मैं आपको कहीं और ले जाना चाहता, पर ये बता दूं कि आज ये झूठ टूट जाए। अगर योद्धा और विक्टिम एक साथ नहीं चल सकते। I'm telling you, a warrior and a victim cannot walk together. या तो तरस की उम्मीद करो या तो तलवार उठा लो, एक ही चीज कर सकते हो, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। Either you keep on expecting pity or you take up your sword. Either of the one can happen. You cannot do both together. कोई मेरे घर नहीं आया। Oh, nobody came to my house. बहुत अच्छी बात है भाई, That's a good thing. वचन में बढ़ो। Grow in the word. मैं बीमार था, कोई मुझे देखने नहीं। I was sick. Nobody came to see me. अच्छा है कोई देखने आया, आना चाहिए, मगर उनके आने से आप चंगे नहीं होगे, मगर तलवार उठाओगे तो चंगे जरूर हो जाओगे। It's good if someone came to see you, but you will not be healed just because they came. But if you take up the word, you will be healed. Pity will not take you anywhere. तरस आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। ओके, सो एक सोल्जर जो है ना, उसको पता है जब तक आखिरी लोग आज कहते हैं अच्छा फिर वो क्यों मर गया, वो भी तो प्रभु में था। अगर ऐसे एक सोल्जर सोचने लग जाए फिर तो कोई आर्मी में जाएगा ही नहीं। So people say, oh, why did that guy died? He was also in the Lord. If a soldier thinks like this, nobody will go in the army. भैया he died because लड़ाई चल रही है, बट वो मर के भी मसीह के साथ चला गया, तो हार नहीं है किसी भी मसीह योद्धा की। That guy died because a war is going on. हार नहीं है। Even after death he went to the मगर Lord. क्योंकि शैतान ने हमारे एक भाई को बीमारी से मार दिया, इसका मतलब ये हम हाथ पे हाथ रख जाएं और अब कुछ ना करें। अगर उसने हमारे एक भाई को मारा तो हम लाखों को चंगा करेंगे यीशु के नाम में। But because the devil killed one of our brothers in sickness doesn't mean we do nothing now. No, because he has killed one of our brothers, we will heal lakhs of people. अगर दो दोस्त हैं आर्मी में और एक मर जाता है तो जिसका दोस्त है वो क्या कहता है? वो कहता है मैं भी हथियार छोड़ दूं। वो कहता है अब मैं और जोश से लड़ूंगा और बदला लूंगा अपने दोस्त की मौत का। If two friends are in the middle of a war and one friend dies, does the other give up now that my friend is dead? No, he takes up his weapon and he says, now I will fight all the more because I will take revenge for my friend's death. जॉन जी लेक के घर में 6 मृत्यु हुई, उनके भाई उनकी बहन मरते गए एक के बाद एक। 6 people in John G. Lake's family died, his brother, his sister and people. तो वो भी कैल्विनिस्ट बन जाते कि भैया ये सब प्रभु की इच्छा है। He could have also become a Calvinist. Oh, this is the Lord's will. वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, उन्होंने अपनी बाइबल पकड़ी और बाइबल फेंक दी, ये सब झूठा है। He got so frustrated, he took his Bible and he threw it. This is all और a जब lie. बाइबल नीचे गिरी तो बाइबल खुल गई प्रेरितों के कार्य 10:38 में। When the Bible fell down, it opened at Acts chapter 10 and his eyes went to Acts और उसमें 38. लिखा था परमेश्वर ने किस रीति से मसीह यीशु का
पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ बपतिस्मा किया, जो भलाई करता चला और जो शैतान के सताए हुए थे, जो बीमार थे शैतान के, उनको चंगा करता। तो उनकी आंखों के आगे एक लाइट बल्ब जला, अरे बीमारी तो शैतान की तरफ से सताव है। And it was written there how God anointed Jesus of Nazareth, that he went about doing good and healing all those who were oppressed by the devil. And a light bulb blinked in his mind, and he understood how the devil has been oppressing people with sickness. फिर से मैं बोलता हूं, जब तक इस बात में श्योर नहीं होगे ना, बीमारी को नहीं हरा पाओगे। जब तक सोचोगे परमेश्वर ने तो नहीं दी मुझे, I'm telling you, until you are sure in this, you will not be able to defeat sickness. If you keep thinking, has God given me this sickness? मुझे पता है कुछ लोगों के दिमाग में जोब आ रहा है, I know some people are thinking about Job. बट जोब को भी परमेश्वर ने दी, शैतान नहीं दी थी बीमारी उसको But भी। even to Job, God did not give sickness, the devil gave him sickness. अब फिर बोलोगे मगर प्रभु ने अलाउ किया था ना। Then you'll say, oh, but the Lord allowed, अरे right? पर जोब के पास अधिकार नहीं था ना, यीशु मसीह के Oh, नाम but में आप Job- और मेरे पास है। Oh, but Job did not have authority in Jesus' name. You and I have authority in Jesus' name. Amen? Amen. We are in a better covenant with better promises. हम एक उत्तम वाचा में हैं, उत्तम वायदों के साथ। कितने लोगों के घर में गैस है, एलपीजी या हाँ गैस है, आप गैस How many people have जंगल जंगल से जाके लकड़ी क्यों नहीं लाते हो आप? क्योंकि पुराने समय में तो वो व्यक्ति भी लकड़ी लाता था, आप क्यों नहीं लाते हो? Why don't you go to the jungle and gather wood? Because in the old days, that guy also used to go to the woods and gather. Don't compare yourself with Job. Don't compare yourself. Job was not in a better covenant. The blood was not shed. The resurrection power was not given. The authority was not given to every believer. अपनी तुलना अयूब से ना करें, क्योंकि उस समय यीशु का लहू बहाया नहीं गया था, विश्वासियों को अधिकार दिया नहीं गया था, वो उत्तम वाचा में प्रवेश नहीं हुआ था। अय्यूब के पास कोई अधिकार नहीं था शैतान के ऊपर, मगर आपके लिए यीशु ने लूका 10:19 में कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है, और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। Job had no power over the devil, but to you Jesus has said, behold, I give you authority to trample on snakes and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means harm you. जोब देखता होगा स्वर्ग से, कहता होगा क्या बेवकूफ लोग हैं, मेरे पास अधिकार होता तो मैं इस्तेमाल करता अधिकार का। When Job would look down from heaven, he would say, what foolish people, if I had authority I would have used it. भैया वो अलग कवर्नेंट में था। He was in a different covenant. खतना क्यों नहीं कराते हो आज आप लोग? Why don't you get circumcised today? इब्राहिम जो पुराने नियम में थे वो खतना कराते थे। Abraham हम उस used to get वाचा circumcised. में नहीं है भैया। We are not in that covenant. वचन का प्रकाशन चाहिए हमें, कोई भी बेवकूफ बना देता है आपको। We need the revelation of the word. Anybody fools people. अगर सब कुछ परमेश्वर की तरफ से हो रहा है, why does God says resist the devil and he will flee away from you? If God is doing everything, वो क्यों कहता है कि शैतान का सामना करो और वो तुम्हें छोड़ के भाग जाएगा? क्यों नहीं परमेश्वर ने कहा मैं भगाऊंगा उसको? क्यों परमेश्वर कह रहा है जब तुम उसका सामना करोगे अधिकार से तब वो भागेगा? Why doesn't God say I will make the devil run away? But he says when you will resist him, then he will run away. क्या जोब के पास ये आयत थी? Did Job had क्या जोब के पास ये प्रतिज्ञा थी? क्या परमेश्वर ने जोब को कहा था कि शैतान का सामना कर वो तेरे सामने से भाग जाएगा? Did Job have this promise? Did the Lord give this promise to Job that you'd resist the devil and he'll run away? मगर आपको और मेरे पास वो प्रतिज्ञा है, But to you and I, we have this promise. तो इस्तेमाल करो इस अधिकार का। So use this authority. Amen? Amen. So जॉन जी लेक जब उन्होंने ये पढ़ा, उन्होंने कहा ओह अब मुझे समझ, मैं तो सोच रहा था परमेश्वर ले गया मेरे भाई बहन को, ये तो शैतान ले गया। When John G. Lake read this, he said, now I understand it is the devil who has taken my brothers and sisters. I thought it was God. तो वो कह रहे उनके अंदर एक ऐसा एक गुस्सा आया हर टाइप की बीमारी को, उन्होंने कहा आई बिगैन टू हेट एवरी फॉर्म ऑफ सिकनेस। So he was filled with anger, और वो कहते मैं हर एक बीमारी और रोग से नफरत करता हूँ। और उन्होंने कहा अब खुदा तू मेरा इस्तेमाल करेगा और ये जो शैतान के सताए बीमार है ना, मैं उन्हें चंगा करूंगा। और वो व्यक्ति बने। ओरेगन में आप पढ़ सकते हैं, जिस शहर में थे वो ओरेगन में 99% लोग चंगे हो गए, हॉस्पिटल बंद हो गए इस एक मिनिस्ट्री की वजह से।
And he says, now Lord, I will be the man whom you will use mightily to heal your people. And in the city where he was in Oregon, 99% of people were healed. कैसे हुआ? How क्योंकि did it happen? एक अधिकारी खड़ा हो गया अपने अधिकार में। अरे सोचो, अगर इतने सारे अधिकारी खड़े हो गए, दिल्ली के हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे यीशु के नाम में। Because one man stood in authority in his place. Imagine if so many people stood in their authority, hospitals of Delhi will be emptied in Jesus' name. Amen? Hallelujah. अरे परमेश्वर की इच्छा नहीं है चंगा करना, तो यीशु मजाक कर रहा था हमारे साथ जब उसने कहा सुसमाचार प्रचार करो और बीमारों को चंगा करो। Oh, it's not God's will to heal people. Was Jesus joking when he said, go preach the gospel, heal the sick? आपकी माने या यीशु की माने? Should we obey you or should we obey Jesus? Amen? Hallelujah. I have great honor for Job because अपनी covenant में जो वो बेस्ट कर सकता था उसने करा। मेरे दिल में बड़ा आदर है अयूब के लिए. He did the best he could do in his covenant. But I cannot follow him. पर मैं उसके पीछे नहीं चल सकता. I cannot make him my example. मैं उसको अपना उदाहरण नहीं बना सकता. I am in a better covenant. मैं एक बेहतर I वाचा में have हूँ. Jesus Christ as my role model. मेरे पास यीशु मसीह है मेरे उदाहरण के लिए. Not Job. अयूब नहीं. जोब की पुस्तक से हम क्या सीखते हैं कि चाहे कितनी भी परेशानी हमारे जीवन में आए, हमारे मुंह से परमेश्वर की स्तुति नहीं रुकनी चाहिए. ये हम उसके जीवन से सीखते हैं. What do we learn from his life? That no matter what circumstances come in our life, God's praises shall never cease from our मगर mouth. थियोलॉजी जोब से नहीं ले सकता मैं. But I cannot get theology from Job. नो 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 नो. No. थियोलॉजी तो यीशु मसीह से ही आएगी. My theology will only come from Jesus. जीसस क्राइस्ट इज आवर थियोलॉजी. यीशु मसीह ही हमारा ईश्वरीय ज्ञान है. Amen. बाइबल नहीं कहती you have been called to grow into the image and likeness of Job. बाइबल ये नहीं कहती आप अयूब के कद काठी में बढ़ने के लिए बुलाए. The Bible says we've been called to be conformed into the image and likeness of the Son of God. लेकिन बाइबल कहती है हम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में बढ़ने के लिए बुलाए गए. Okay? कई लोग सोचते हैं मुझे जोब पसंद नहीं. I honor him. Some people think I don't like Job. मैं उनका आदर करता हूँ. मैं उनका जोब एक परमेश्वर के संत है, हम उनका बहुत आदर करते हैं. He was a saint of God and we honor him. जोब के पास पूरा सत्य नहीं था. But Job did not have the whole truth. आज मसीह ने आपके और मेरे ऊपर पूर्ण सत्य को प्रकट कर दिया है. Today Christ has revealed the whole truth to you and me. इनफैक्ट अगर आप देखो, जोब को तो ये भी नहीं पता था कि शैतान जैसा कुछ है. Job did not even know if there's something called a क्योंकि devil. वो परमेश्वर को कह रहा था तूने दिया, तूने ले लिया, तेरे नाम को धन्य हो. और बाद में परमेश्वर कहता है ये कौन है जो मूर्खता की बातें करके मेरी युक्ति को बिगाड़ता है. Because Job said it is you who give and you who take away. And later on God replies to Job saying, who is this who speaks foolish things? और आज लोग गाना गाते तू ही देता है. And today people sing such songs, you give and you take away. लेता है यहोवा. अरे बाइबल पढ़ लो, यहोवा ने लिया या शैतान ने लिया? Read the Bible. Did God take away or did the devil take away? यहोवा ने दिया God और उसके gave. बाद स्टोरी के एंड में डबल दिया. God gave and then at the end of the story God gave double. यहोवा ने दिया, God gave, शैतान ने लिया, the devil took यहोवा away. ने डबल वापस दिया. So God gave back double. This is the word. ये वचन है. ओके, थोड़ा इजी करते हैं इसको. Hey, make it easy. अपना दाएं हाथ ऐसे करो, Put your right hand here. बोलो परमेश्वर Say God अच्छा है. is good. फिर अपना दूसरा हाथ करो, Put your other hand out. बोलो शैतान So devil बुरा is है, bad. परमेश्वर God अच्छा है, is good. शैतान Devil बुरा is है. bad. कंफ्यूज मत करना इन दोनों को. Don't confuse these two. यही तो चाहता है वो This कि is what मारूं the- मैं और ये ब्लेम करे परमेश्वर को. This is what the devil wants, that he would strike and people would blame God. जब पतरस यीशु का इनकार करने वाला था, उससे पहले यीशु ने क्या कहा? शैतान ने मांग लिया तुझे तुझे पीटने के लिए. कौन When- मांग रहा था? शैतान.
When Peter was about to deny Jesus, Jesus said, "The devil has asked for you to swift you as wheat." जब जूडस ने यीशु का इनकार करा, कौन घुसा उसके अंदर? परमेश्वर का दूत या शैतान का दूत? When Judas betrayed Jesus, who entered him, an angel of God or a demon? हालेलुया। कुछ सीख रहे हैं हम आज? Are we learning anything? यीशु ने कहा, जीसस गेव द क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स होता है, पढ़ा हमने? आईएएस की तैयारी कर रहे हैं लोग, बोलते हैं 1 महीने में तुम्हें आईएएस ऑफिसर बना देंगे, आ जाओ हमारे यहाँ। हाँ, तो यीशु ने क्रैश कोर्स दिया थियोलॉजी में। Jesus gave them a crash course of theology. यूहन्ना 10:10। In John 10:10. शैतान इसलिए आया The devil came कि चोरी करे, that he would steal, नाश करे, kill, घात करे। and destroy. मैं इसलिए आया I have come कि तुम जीवन पाओ so you'd have और life बहुत आयत का जीवन पाओ। And life in abundance. Is that complicated? क्या ये कठिन है? क्या यीशु ने कहा शैतान इसलिए आया कि चोरी करे, घात करे, और कभी कभी मैं भी कर देता हूं? Did Jesus say the devil came to steal and kill and sometimes I also do it? सो इसका मतलब फिर से, ओके, थोड़ा रेपिटेशन जरूरी है, ठीक है? शैतान इसलिए आया The कि devil चोरी came करे, to steal, नाश करे, kill घात करे। and destroy. अब अगर किसी के जीवन में बीमारी हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये कौन कर रहा है? If there is sickness or accident in someone's life, who's doing it? कौन कर रहे हैं? शैतान, क्योंकि यीशु ने हमें बता दिया। The devil is doing it because Jesus has told us. अगर आपके जीवन में जीवन मैनिफेस्ट हो रहा है, In your उसकी life- बहुत आयत मैनिफेस्ट हो रही है, तो ये कौन कर रहा है? If in your life is abundance of life, then who is doing it? बहुत सारे मसीह आज डिसीव्ड हैं, धोखे में हैं। इसीलिए याकूब ने अपनी पत्री में कहा, लगाना पुट जेम्स 1:17, धोखा ना खाओ, हर एक अच्छा दान और वरदान परमेश्वर की ओर से आता है। Many believers are deceived today. That's why James writes in James 1:16 and 17, do not be deceived. Every good and 16. every 16 लगाएं, 16 लगाओ। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। Do not be deceived, my beloved brethren. नहीं पास्टर जी, मुझे पता है ये कैंसर प्रभु नहीं दिया है Oh मुझे। no, Pastor ji, I know this cancer God has given. यू आर अ डिसीव्ड मसीह। आप धोखा खाए हुए मसीह हो। डीएम, डोंट बी अ डीएम। धोखा खाए हुए मसीह ना हो। धोखा ना खाओ, बाइबल के लिए। कब खाते हो आप धोखा? Don't be जब आप deceived. सोचते हो बुरी चीजें भी परमेश्वर से आती हैं, तो आप धोखा खाए हुए हो। When are you deceived? When you believe that bad things can also come from God. अब हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं ये वचन मरोड़ है। भैया इसमें क्या मरोड़ू मैं? Now they put this allegation on us, we twist the word. What can क्या we twist in मरोड़ू this? मैं तो डाल ही रहा है, मैं तो पढ़ रहा हूं आपके सामने ये। I'm not putting anything, I'm just reading धोखा this. ना खाओ, Don't be deceived. हे मेरे प्रिय भाइयों, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। Don't be deceived. Every good and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights. उत्तम दान, Perfect gift. चीप दान नहीं। गॉड इज नॉट इनटू चीप बिजनेस। परमेश्वर सस्ती चीजें नहीं देता। वो कहता है तेरे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा He मैं। says, I will satisfy you with the best. जब उड़ाव पुत्र घर आया तो पिता ने ये नहीं कहा, अरे एक काम करना, अरे वो सरोजनी मार्केट से वो जो 150 रुपए का लिया था ना, वो फटा हुआ जिसो डिफेक्ट था, वो लेके आओ इसके लिए। When the prodigal son came back, the father did not say, oh, that cheap thing that we got from Sarojini, give it to him. पिता ने कहा, सबसे उत्तम रोब, सबसे उत्तम ड्रेस मेरे बेटे के लिए लेके आओ। He said, give him the best robe. Give my son the best robe. हर एक उत्तम दान और वरदान ज्योतियों के पिता से आता है। Every good and perfect gift comes down from the Father of lights. हालेलुया। कितने लोग यहां पर हैं जो अपने बच्चों को अपनी कैपेसिटी में जितना बेस्ट दे सकते हैं, जितना उत्तम दे सकते हैं? दिखाओ मुझे अपना हाथ।
How many people here would give their best to their children in their capacity? क्या आप ये कहना चाह रहे हो आप परमेश्वर से ज्यादा अच्छे और दयालु हो Are you और saying- ज्यादा प्यार करने वाले हो? क्योंकि आप तो अपने बच्चों को उत्तम देते हो, मगर परमेश्वर अपने बच्चों को कैंसर देता है, बीमारियां देता है, एक्सीडेंट देता है. Are you saying you are better than God because you in your capability give your best to your children, but you're saying God gives sicknesses and accidents to his kids? हालेलुया. चलें आगे बढ़े, वापस आते हैं टॉपिक में. क्योंकि गोली कहां से आ रही है ये पता होना चाहिए, You should know where the bullet is coming from. तभी वापस उस साइड गोलियां छोड़ सकते हो आप. So you can send bullets back in that direction. अपने कैंप की तरफ गोलियां मत छेड़ो. Don't send bullets towards your own camp. पिता को ब्लेम मत करो जो शैतान कर रहा है. Don't blame God. Don't blame the father for what the devil is doing. क्योंकि यीशु ने क्या कहा, ध्यान से सुनना, मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करने आया हूं. Jesus said, I have come to fulfill the will of my father. और फिर उसने क्या किया, And then what did he do? बीमारों को चंगा किया, He healed the sick, दुष्ट आत्माओं को निकाला. casted out demons. आज अगर कलीसिया में ये होता है तो लगता है झूठे, ये झूठे चिन्ह है. Today, if this happens in churches, they say these are false signs. अरे उस पिता की इच्छा इस कलीसिया में पूरी हो रही है. बीमार लोग चंगे हो रहे हैं, जो दुष्ट आत्मा से सताए हुए हैं वो चंगे हो रहे हैं. पिता, यीशु ने कहा मैं पिता की इच्छा को पूरा करने आया हूं. पिता की इच्छा आज भी ये है कि आप स्वतंत्र हो जाओ. The will of the Father is being completed in this church. The sick are being healed. The demon possessed are being set free. This is the will of the Father that you'll be healed. आमीन. मैं घोषणा आपके ऊपर करता हूं I declare this कि over you. आप मरोगे नहीं अपने समय से पहले, That you- मगर परमेश्वर आपकी आयु को पूरा करेगा और आपके द्वारा वो अपनी एक बड़ी महिमा लेगा यीशु के नाम में. That you will not die before your time. You will fulfill the number of days and you will greatly glorify your God through your life. अगर विश्वास करते हो एक ऊंचा आमेन बोलो. If you believe, say amen. आमेन. आप सब बैठ सकते हो. अब ध्यान से इस आयत को ध्यान से सुनो. ओके, Now hear carefully. ठीक है. कैपेसिटी है अभी और सुनने की. हाँ, थोड़ा स्टर करो अंदर. मैं अभी नॉर्वे में वहां पे था, स्वीडन में, तो मुझसे कहते हैं आपकी 6 घंटे कलीसिया होती है, I was in Sweden and they said you have 6-hour service. आप कलीसिया का टाइम थोड़ा कम कर दो. You should reduce your church time. मैंने कहा क्यों, मूवी का टाइम बढ़ता जा रहा है I said, why movie times are going up और कलीसिया का समय कम होता जा रहा है. and church time is going down? और फिर हम कहते हैं कि क्यों ऐसा, यंग लोग क्यों कलीसिया में नहीं है. And we say, why are the young people not in the church? आमीन. मुझे तो कम लगते हैं 6 घंटे. I think 6 hours are less. ओके. आमीन. क्योंकि याद रखना, एक ब्लैक कैट कमांडो को और एक साधारण सिपाही को केवल उनकी ट्रेनिंग डिफरेंशिएट करती है. बाकी कोई ऐसा नहीं है कि कोई शरीर में ऐसा है. नो, इट्स द ट्रेनिंग दैट डिफरेंशिएट्स. ट्रेनिंग बनाती है किसी को ब्लैक कैट कमांडो और किसी को एक साधारण सिपाही. Because it is the training that makes somebody a black cat commando and somebody a normal guard. तो जब बुलाए गए हो ब्लैक कैट कमांडो के लिए, तभी तो प्रभु ने भेजा है यहाँ पे. So when you are called to be black cat commando, that's why God has sent you here for training. आमीन. देख रहे हो आप, इतने सारे आप लोग हो जो वचन के द्वारा इनक्योरेबल बीमारियों को हरा रहे हो. So many people here. It is you guys who are defeating incurable diseases by the power of the spoken word. That's black cat commandos in the spirit. ये आत्मा में black cat commandos ही तो हुए. Amen. Hallelujah. शैतान चिढ़ा हुआ है बहुत. The devil is irritated. अब चिढ़ ही रहा है तो और चिढ़ाते हैं अच्छे से. Since he is irritated, let's irritate him more. Hallelujah. Okay. जैसे हमें हथियार हैं, वैसे याद रखना आपके विरोध में भी हथियार बनते हैं. Just as we have weapons, always remember there are weapons that are formed against you. हमेशा याद रखना, शैतान कुछ नहीं कर सकता, वो परमेश्वर को कॉपी करता है. ही इज अ चीप कॉपी कैट. The devil can do nothing. He just copies God. वो परमेश्वर की नकल करता है. उसको पता है परमेश्वर ने सृष्टि कैसे बनाई. He knows how God created the entire universe. कॉपी करता है. आज जो तांत्रिक हैं, जो बैठ के शमशान घाट में मंत्र तंत्र कर रहे हैं रातों तक, वो किसी के घर चाकू लेके थोड़ा ना जाते हैं. वो क्या करते हैं, वहां से
मुंह से तीर छोड़ते हैं उस परिवार के विरुद्ध। The witch doctors, they don't go to somebody's house with a knife, but they go to a graveyard, they sit there and they speak words against someone. क्या करते हैं? What they do? They chant. वो उच्चारण करते हैं। कि वो उनको पता है धार्मिक प्रक्रिया है। हाँ, रब की हो They know it's not a religious thing to do. हमें लगता है हम टाइम पास कर रहे हैं। We think we are उनको passing पता है time. वो क्या कर रहे हैं। They know what they're उनको doing. पता है मैं यहाँ बैठे बैठे उस परिवार को मार दूंगा। They know that they can destroy a family in उनको there. पता है मैं जो श्राप भेज रहा हूँ ये आत्मिक जहां में तीर की तरह जा रहा है उस परिवार पे। They know that the curse they are sending is going like an arrow in the spirit world. मगर मसीह बहुत भोले हैं आज, उनको नहीं पता कैसे हमें अपना आत्मिक हथियार। अरे आपके पास जो हथियार है, आपके मुंह से तलवार निकल रही है, अगर आप मसीह में बने हुए हो, आत्मा से भरे हुए हो, तो वो तीर उल्टा उसके पास जाएगा। But believers are so simple, they don't understand this today. If you are filled with the Spirit of God, that arrow will go back to that guy who sent बाइबल it. कहती है याकूब के घराने के ऊपर कोई मंत्र तंत्र नहीं चलता। The Bible says no divination, no witchcraft shall prevail against the household of याद Jacob. रखना, जो आपके ऊपर जादू टोना करता है वो अपनी कब्र खोदता है यीशु के नाम में। Always remember, he who does witchcraft on you is digging his own grave in Jesus' name. हालेलुया। अब ये सुनो ध्यान से, Now hear carefully. ठीक है। आइसाया 50:17, यशाया 54 उसका 17, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, यानी हथियार बनाए जा रहे हैं आपकी हानि के लिए लगातार। No weapon that is formed against you. That means weapons are being formed against you continuously. ये जो हथियार हैं ये एक्सेसरी शो के हथियार नहीं है, ये हथियार बनाए जा रहे हैं आपकी हानि के लिए, आपके परिवार की हानि के लिए, आपके स्वास्थ्य की हानि के लिए, आपके मेंटल पीस की हानि के लिए, और ये तीर आत्मिक जहां में छोड़े जाते हैं आपके ऊपर। These weapons are not just for show, but they are sent against you, your family, your health, your mental health, and they are sent as arrows in the spirit world. जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा। No weapon formed against you shall prosper. अरे आमेन तो बोलो भाई। मगर अपने आप ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं होगा But it does not happen automatically on its own. कि हाँ जी Oh yes. बाइबल में लिखा है कोई हथियार मेरे विरोध काम नहीं करेगा पास्टर जी। Oh, Pastor Ji, Bible says no weapon will अरे आगे भी function पढ़ो, against you. आगे लिखा है उससे कुछ, क्यों नहीं हथियार वो काम करेंगे, उसके आगे क्या लिखा है। But read why that weapon will not work against you. जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए उनमें से कोई सफल ना होगा। No weapon formed against you shall prosper. फिर ना हिंदी ने ना मूड खराब कर दिया मेरा, यहां लोग कर दिया। इंग्लिश बाइबल सेज, आई वांट यू टू हियर दिस इन इंग्लिश, नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर, वेपन एंड एवरी टंग, वेपन टंग, वेपन टंग, वेपन्स आर बीइंग फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द टंग्स, टंग, लोगों की जीभ से वेपन बन रहे हैं, मगर आपकी जीभ में भी एक वेपन है जो उन सारे वेपन को नाश कर देता है। कोई हथियार तुम्हारे विरुद्ध बना गया जो है वो सफल ना होगा, और हर एक जीभ, क्योंकि हथियार जीभ के द्वारा बनाए जा रहे हैं, तो कोई भी हथियार तुम्हारे विरुद्ध सफल ना होगा। एवरी टंग दैट राइजेस अगेंस्ट यू, आपके विरोध में क्या उठता है? जीभ उठती है। एवरी टंग दैट राइजेस अगेंस्ट यू, हर एक जीभ जो आपके विरुद्ध उठती है। दुष्ट आत्माएं वेट कर रही हैं कि कोई व्यक्ति श्राप दे आपको, और वो श्राप लेकर आपके तरफ आते हैं। Demons are waiting that somebody will curse you, and they catch those curses and come towards you. इस वर्ड्स में कहीं नहीं लिखा कि मैं खंडन करूंगा उन हत्यारों का। This verse does not say that I or God is saying that He will condemn. वो कहता है मैं उन सारे हथियारों गिराऊंगा। वो कहता है तेरे ऊपर कोई हथियार जो है वो सफल नहीं होंगे जब तू खंडन करेगा उन जुबान को जो तेरे विरोध में उठती है। God is saying none of these weapons or none of these tongues will prevail against you when you will condemn them when they rise against you in judgment. अरे भाई साहब ये क्या हो गया, आपका पेट फूला फूला, अरे भाई साहब आपको स्टमक कैंसर तो नहीं हो गया, अरे आपको अरे आपकी उंगलियां, आपको अर्थराइटिस, आपको पता भी नहीं चला, एक जीभ आपके विरोध में उठी और वो हथियार आपके ऊपर भेजा गया। आपको बोलना है लिखा है दीर्घायु से मेरा परमेश्वर मुझे तृप्त करेगा। You don't even realize when someone comes to you as your well-wisher and a tongue rises against you and sends an arrow towards you,
At that time, you have to declare, it is written, my God will satisfy me with a long life. God doesn't say, I will condemn. God says, you will condemn because that's your inheritance as the servant of Most High God. परमेश्वर ये नहीं कहता कि मैं उस जीव का खंडन करूंगा, वो कहता है तुम करोगे क्योंकि ये तुम्हारी विरासत है परमेश्वर के सेवक होने के नाते. सीखना पड़ेगा आपको. You'll have to learn. शैतान कहता है तू समय से पहले मर जाएगा. The devil will come and say you will die before आपको time. बोलना है शैतान लिखा है, You'll have to tell मैं him, दीर्घायु जीऊंगा. devil, it is written, वो I कहेगा तू will live a हमेशा long गरीबी life. में रहेगा. बोलो लिखा है क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी. The devil will say you will always be in lack, but you have to tell him, devil, it is written, the Lord is my shepherd, I will not be in lack. मगर सोचो क्या होगा अगर आपका मुंह बंद है. But what will happen if your mouth is shut? What will happen? क्या होगा? वो तीर छोड़े जाएगा आपके विरोध में. He will keep sending arrows against you. That's why, hear this, let me say this. सुनिए मैं ये कह रहा हूँ. Oh man, this is good. We should put this in quotation in Instagram. Hear this. A silent believer is a defeated believer. एक खामोश विश्वासी एक हारा हुआ विश्वासी है. I said a silent believer is a defeated believer. मैंने कहा एक खामोश विश्वासी एक हारा हुआ विश्वासी. But a speaking believer is a victorious believer. लेकिन एक बोलने वाला विश्वासी एक जयवंत विश्वासी है. इसीलिए तो चिढ़ रहे हो. देखो ये कहते हैं घोषणा करो, घोषणा करो. That's why they are irritated. Oh, they say declare, ये declare. लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, घोषणा They करो. are fooling people. Declare, declare. अरे क्या घोषणा करो? What declare? What? क्या ये बोल रहे हैं कि रीडर डाइजेस्ट की घोषणा करो या मनोरमा की घोषणा करो? अरे बोल रहे हैं परमेश्वर के वचन की घोषणा करो जिसमें जीवन है. Are we saying declare Reader's Digest or some random magazine? No, we are saying declare the word of God which is full of life. कौन नहीं चाहेगा कि आपके मुंह में परमेश्वर का वचन हो? बस हमेशा याद, अगर कोई भी ऐसी टीचिंग सुनो जो आपको कहते हैं घोषणा करना सही टीचिंग नहीं है, तो समझ जाना ये स्रोत क्या है इस शिक्षा का, और कौन नहीं चाहता कि मसीहों के मुंह में परमेश्वर का वचन हो. If you ever hear such a teaching that is telling do not declare, you should not make declarations, then understand who is the source of those teachings, who is the person that would not want that you should declare. हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर आपके मुंह के वचनों से लड़ाई लड़ता है, पता है आपको? Do you know God? स्वर्ग रेल्म्स में जो लड़ाई होती है ना, आत्मिक जहां में जो स्वर्गदूत आपकी तरफ से लड़ते हैं, वो आप लिमिट कर सकते हो स्वर्गदूतों को अगर आप गलत शब्द बोलते हो अपने मुंह से. In the spirit world, the angels fight on behalf of the words you have spoken. You can limit those angels of God by the wrong words that you speak. अरे अब तो 60 उम्र हो गई, हमें जीना ही कितना है. आत्मिक जहां में वो कहता पकड़ इसके वचन को, पकड़, इसने बोल दिया आप जीने, मार इसको जल्दी. Oh, now we are 60, how long should we live? And in the spirit world it says, hold his words, take his words, we have to kill him. इमोशनल मसीह मत बनो. Don't be an emotional Masi. वचन में जड़ पकड़े हुए मसीह बनो. But be a believer who is deeply rooted in the word of God. Do you know our problem is we are quick to voice out what we feel. और यही शैतान चाहता है, आपको फील कराए और आपके मुंह से निकले. हमारी समस्या ये है, हम जल्दी से मुंह से बोल देते हैं जो हम भावनाओं में महसूस करते हैं, और शैतान यही चाहता है. This is what the devil wants. इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जीवन और मृत्यु मनुष्य की जीभ में दफन है. This is why the Bible says life and death is in the power of your tongue. दुष्ट आत्मा के जो बच्चे हैं, ये जो सारे जो लोग हैं, ये मुंह से परिवारों को नाश कर रहे हैं, और वहीं पे मसीह के जो लोग हैं वो मुंह के वचनों से लोगों को जीवन दे रहे हैं. जीवन और मृत्यु आपकी जुबान में. The children of the devil are killing people by the words of their mouth, and that is how the people of God, the children of God, are releasing life from their mouth. Amen. तो वचन कहाँ होना चाहिए? So the word should be in your टी mouth. शर्ट में होना काफी नहीं है. Not enough to have it on your t-shirt. घर के फ्रेम लगा के काफी नहीं है. स्टिकर लगा के काफी नहीं है. Putting frames and stickers is not enough. गाड़ी के पीछे स्टिकर में होना काफी नहीं है. Not enough as a sticker behind your car. मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं. I have put my words in your mouth.
अगर अधिकारी की तरह जीना है, अगर अधिकार, सोचो यीशु ने क्या किया। एक व्यक्ति यीशु के पास आया A man came to Jesus जो एक सूबेदार है रोम की आर्मी में, who is a leader in उसका the Roman army. नौकर बीमार है। आज लोग क्या कहते हैं, आज कई मसीह लोग, आपको पता है कई मसीह लोग नाराज हो जाते हैं कि पास्टर हमारे घर में नहीं आया प्रार्थना करने। Today many believers get offended that pastor did not come to our house to pray. क्यों? क्योंकि अभी तक अधिकार को नहीं समझे। They have not understood authority yet. वो यीशु के पास आया The centurion came और to बोला, Jesus and he said, खैर इससे पहले मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि वो मीटिंग में जब वचन भेजा जा रहा है तब ध्यान नहीं दे रहे। when the word is sent during the meeting, they don't pay attention. और बाद में And then they'll come and say, हम उसके विरोध में नहीं है, मगर समझो इस बात को, we're not against. अगर आप जब वचन भेजा जाता है तब रिसीव कर लो तो हाथ रखवाने से पहले ही चंगे हो जाओगे। When the word is sent and you receive it, you will be healed even before laying hands. सो ये सूबेदार यीशु के पास आया और बोला मेरा नौकर मीलों दूर है। समझ लो वो सूबेदार यहाँ है, उसका नौकर सोचो देहरादून में है। So this centurion came and his servant, he said, is far away. So you can imagine the centurion here says the servant is in तो Dehradun. यीशु कह रहा है ठीक है मैं आके उसको चंगा करता हूँ। So Jesus said, okay, I'll come and heal him. कह रहा है, He said, क्या no, जरूरत no. है? क्यों? Why? No need. जरूरत ही नहीं है, No need. क्योंकि वो अधिकार को समझता है। Because he understood वो authority. कहता है He says, केवल वचन बोल दे मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। speak the word only and my केवल servant shall be वचन healed. बोल दे। कितने ऐसे मसीह हैं जो आके बोले अपोस्टल जी केवल वचन बोल दो मेरे पापा ठीक हो जाएंगे, और वहां पे How many believers are like that? They will say, Apostle Jesus, speak the word and my father will be healed there. we have to understand how authority works. It works through words. हमें समझना अधिकार कैसे काम करता है, शब्दों के द्वारा. और यीशु हैरान हो गए, And Jesus was astonished. कह रहा है ऐसा विश्वास तो मैंने पूरे इजराइल में नहीं देखा। He said, I have never seen such a faith in all of Israel. क्योंकि ये व्यक्ति अधिकारी था, वो जानता है अधिकार मुंह के वचनों से कार्य करता है। Because he was a man of authority, he understood authority works by the words of your mouth. और यीशु ने कहा जा तेरे विश्वास। सोचो वो शब्द दिल्ली से जाएंगे देहरादून, जो नौकर है उसके ऊपर बैम और नौकर चंगा हो गया। And क्योंकि Jesus, वचन भेजे जाते हैं, वचन को भेजना सीख जाओ। and Jesus said, go, your servant is healed. And the word went and healed the servant. The word is sent to heal. Learn to send word. मगर कई लोग ये नहीं समझते, हर संडे जब वचन प्रचार होता है तो वचन भेजा जा रहा है। But many people don't understand when the word is preached every Sunday, the word is being sent. आप जानते हैं कई लोगों को ही नहीं पता। मैं आज आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। I'll tell you a secret, many people don't know. कई लोगों को लगता है, और होते भी हैं कई लोग, जब मैं लास्ट में प्रार्थना करूंगा तब चंगे होंगे, कई लोग वचन सुनते सुनते चंगे हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चला। Many people get healed while hearing the word and they don't even know. और कई ऐसे हैं जिनके अंदर बीमारी थी, उनको पता नहीं था, वो स्वर्ग में पता चलेगा। And there were so many जो people, ट्यूमर बढ़ रहा था वो पहले ही काट दिया वचन ने। there were so many people who had a sickness in them, a tumor, but the word destroyed it and they never know. आप जानते हैं वचन को दो धारी तलवार कहा गया, और फिर इब्रानी में कहा गया वो दो धारी तलवार से भी पहना है। दो धारी तलवार से पहना आप जानते हैं क्या होता है? जो सर्जरी नाइफ होता है। The word is called a two-edged sword, and then in Hebrews it says it is sharper than a two-edged sword. कोई And a डॉक्टर ऐसे नहीं surgery करता knife- सर्जरी। A surgery knife is sharper than a two-edged sword, and no doctor does it like this. वो छूता है बस, He just touches. वो छूता है। Just touches. मगर कई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती हैं जहां सर्जरी नाइफ नहीं जा सकता। But there are some complicated surgeries where a surgery knife cannot go. कभी ट्यूमर नसों के साथ बंधा हुआ है, A tumor that वहाँ is entangled surgery with नहीं nerves, करता डॉक्टर। The doctor doesn't do the surgery. मगर एक ऐसी सर्जरी नाइफ है जो अंदर जाकर भी सर्जरी कर सकती है जब आप वचन को सुन रहे हैं। But there is a surgery knife that can go deep and do the surgery while you're hearing the word. कैसे एक्टिवेट होगा ये? How does this activate? यानी ध्यान रखो, जब आप हर संडे आते हो, आप इससे आ रहे हो, प्रभु जो वचन अभी
भेजा जा रहा है, जो तू अपने दास के द्वारा भेज रहा है, यू आर सेंडिंग इट थ्रू योर सर्वेंट लॉर्ड, आई एम रिसीविंग दैट वर्ड, और वो एक सर्जरी नाइफ की तरह मेरे शरीर में जा रहा है, एंड हर एक चीज जो तेरी ओर से नहीं उसको काट के अलग कर रहा है. When the word is being sent, receive it as a surgery knife sent to you. Lord, this surgery knife is cutting off everything in my life that is not from you. केवल वचन बोल दे, Just speak the word. केवल वचन बोल दे. Speak the word only. I'd never understood this before. मैं आपको बता रहा हूं, एक फैमिली थी, उनके पति 5-6 साल से उनका कोई जॉब नहीं थी, तो वो कहती थी आप प्लीज घर आओ, और मुझे पता है आप घर आओगे तो जॉब ले. मैंने कहा नहीं भाई, ये बाबा थोड़ा है हम लोग. There was a family and there's a family and the wife would always say my husband But I doesn't have a never job. understood the principle of honor. आप जानते हैं वो सूबेदार यीशु से क्यों ग्रहण कर पाया? Because he recognized the authority of Jesus. That centurion could receive from Jesus क्योंकि उसने पहचान लिया वो अधिकार जो यीशु के ऊपर था, वो उसने आदर किया उसका. सेम पवित्र आत्मा वेस्ट में भी है, फॉरेन में, यूरोप में, सब जगह सेम वचन पढ़ते हैं, सेम गाने गाते हैं, तब भी पवित्र आत्मा के कोई कार्य नहीं है. पता है क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर ने नियुक्त किया है उसको तुच्छ जानते हैं. तो जो अधिकार से वो फ्लो कर, बाइबल कहती है यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में गया और बड़े बड़े काम ना कर सका. क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको रिकग्नाइज नहीं किया, पहचाना नहीं. The same authority, the same Holy Spirit, the same word they have in the Western countries, but they don't see the same power of God because the people that are ordained over them, they don't honor them, they don't receive the authority upon their life. Jesus was not honored and not received in his own, among his own people, and he could not do mighty miracles. प्रभु ने मुझे उनके जीवन से बताया, ये पहले की बात है, पर हम उनके, मैं और पास्टर सामर्थ उनके घर में गए, हमने प्रार्थना करी उनके पति के लिए. 1-2 हफ्ते के अंदर, 1-2 हफ्ते मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, पर एक बहुत जल्दी he got a job, the family started flourishing. तब मुझे समझ में आया कैसे it is, Bible says, ये बात complicated नहीं है. It is without discussion that a lesser is blessed by the greater. यानी जो व्यक्ति, जो अधिकार में परमेश्वर ने रखा है, the words that come out, if you can learn to catch those words, you can have your miracle. We went to their house and they quickly got a job after 5-6 years. इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो अधिकारी है, the one with authority blesses the one under him. The words that come, you quickly catch them. वो गवर्नमेंटल ऑफिसर है. He's a governmental officer. हो सकता है यहाँ पे कोई IAS ऑफिसर आए, चाहे प्रधानमंत्री भी आ जाए. अगर प्रधानमंत्री भी आ जाए तो भी जो आत्मिक दास है वो उसके अधीन है. Maybe a government officer, even if the prime minister comes, that is what people don't understand. They will also be under the spiritual authority. लोग ये नहीं समझते. He is a centurion. वो एक रोमी सेंचुरियन था. And यीशु मसीह उसको गुरु की तरह बोल रहे हैं. But he recognized the authority. वो जानता है मेरा अधिकार इस दुनिया का है, इसका अधिकार स्वर्ग से आता है. तू केवल मुंह से एक वचन बोल दे और मेरा नौकर घर में चंगा हो जाएगा. He understood my authorities of this world. His authority comes from heaven. He said, just release the word and my servant will be healed. Amen. We are ambassadors of heaven. हम स्वर्ग के प्रतिनिधि, राजदूत हैं. Just speak the word only. केवल वचन ही बोल. इसीलिए आज इतने लोग हैं जो YouTube में पूरी दुनिया में चंगे हो रहे हैं, वो यहाँ कभी FLJ नहीं आए. So many people all across the world are being healed watching us on YouTube. They have never come here. वो नहीं कर रहे. They are not asking for prayer. वो क्या कर रहे हैं? What are they doing? जो वचन भेजा जा रहा है उसको ग्रहण कर रहे हैं, और भेजा गया वचन काफी है आपको कैंसर से बाहर निकालने के लिए, ट्यूमर्स को नाश करने के लिए, दिमागी बीमारी, हर एक शैतान के काम को नाश करने के लिए. They are receiving the word that is being sent is enough to take you out of cancers, tumors, out of every mental sickness. आप जानते हैं इसीलिए ये हर एक परमेश्वर के दास के साथ है. सबसे मुश्किल लोग वो होते हैं, उनसे रिसीव करते हैं जो उनके आसपास क्लोज होते हैं. This is with every man of God. The people that are closest to them, they hardly receive from him. ये इमेजिन, यीशु मसीह परमेश्वर है देह में, वो अपनी जगह जाकर बड़े बड़े काम नहीं कर रहे. उन्होंने कहा
यूसुफ का बेटा नहीं है, इसके तो भाई बहन हमने बढ़ते हुए देखे हैं, इसको भी बढ़ता हुआ देखा है. Imagine Jesus, who's in flesh, God in flesh, goes to his people and they say, "Oh, we know this guy. We know his brothers and sisters. They grew up among us." अधिकार किसके ऊपर काम करता है? आप जानते हो उस सूबेदार के ऊपर अधिकार क्यों काम किया? क्योंकि उसने कहा आई एम अ मैन under authority and I have authority. If you don't understand the authority you are under, the word spoken will not benefit you. सूबेदार ने कहा, मैं एक व्यक्ति हूं जो अधिकार के अधीन है और मेरे अधीन भी लोग हैं. जब तक आप अधिकार को नहीं समझेंगे, बोले हुए वचन की सामर्थ को नहीं समझेंगे. एक यहाँ पे माँ आई थी, and I'm just telling you this example so that you understand the power of the spoken word. बोले गए वचन की वो अपनी सामर्थ. फोटो लेके आई थी बच्ची की और उसने कहा कि कोई प्रेयर मुझे नहीं करानी, just speak this word. She brought her child's photo She and came with that faith. said, I don't और need मुझे a जल्दी prayer. जा रहा है, मुझे जाना था, मैंने केवल ऐसे बोल दिया, प्रभु मैं तेरे वचन को भेजता हूँ, जहाँ बेटी है. She came back next week, her daughter came out of ICU. She said, just release the word. I don't need a prayer, just speak the word. Speak the word only and my husband shall be healed. Speak the word only and my wife shall be healed. Speak the word only and my daughter shall be healed. Speak the word only and my mother shall be healed. वचन ही बोल दे, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे हस्बैंड चंगे हो जाएंगे. वचन ही बोल दे. भेजा गया वचन सीक्रेट है, भेजा गया वचन. The secret is the word that is sent. एक परमेश्वर के दास अब वो प्रभु के पास चले गए, रेनार्ड बॉन्की. A man of God who's gone to be with the Lord. ठीक है, अभी कर सकते हैं कंटिन्यू. हाँ, याद तो नहीं आ रहा? कड़ी चावल पेट में गुड़गुड़ तो नहीं हो रही है? ओके. बाइबल कहती है मनुष्य केवल रोटी से और कड़ी चावल और राजमा चावल से जीवित नहीं रहेगा, Bible says man shall not live by bread alone. और रायते से. उन बहन को रायता पसंद है, मुझे भी रायता बहुत पसंद है. ओके, सो ठीक है, आगे चलते हैं. सो रेनार्ड बॉन्की एक परमेश्वर के दास थे. जैसे ही वो स्टेज में थे, प्रचार करने जाने वाले थे, यहोवा का वचन उनके पास आया और परमेश्वर का वचन आया और बोला, माई वर्ड इन माई माउथ is as powerful as my word in your mouth. Reinhard Bonnke was about to step on the stage to preach, and the word of the Lord came to him and said, मेरा वचन मेरे मुंह में उतना ही सामर्थी है, और जितना मेरा वचन तुम्हारे मुंह में सामर्थी है, उतना ही मेरे मुंह में भी है. क्या परमेश्वर कह रहा है? मेरा वचन जितना मेरे मुंह में सामर्थी है, उतना ही मेरा वचन तुम्हारे मुंह में सामर्थी है. The Lord said, as powerful as my word is in my mouth, equally powerful it is when it is in your mouth. इसीलिए वो कहता है, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं. This is why he says, I have put my word in your mouth. ओके. और इसीलिए शैतान चाहता है इनको ये टीचिंग नहीं मिलनी चाहिए. And that's ये why- टीचिंग मिल गई तो ये गए. That's why the devil doesn't want that these should get this teaching. If they get this teaching, they're out of my ये hand. गए. ये सुबह शाम मेरी पिटाई करेंगे. They will beat me day and night. सुबह करेंगे, फिर दिन में करेंगे, They फिर will रात beat को me in the करेंगे. morning, then during the day, then at night. पिटाई होती रहेगी. The devil तो will इनको keep बोलो, forgetting. अरे कुछ नहीं होता, घोषणा घोषणा Tell them nothing happens by declaring. कुछ नहीं होता. Nothing इतना happens. कुछ हो रहा है. फिर वो बोलते हैं ये So तो much- शैतान कर रहा है. So much is happening. Then they say, oh, the devil is doing this. वाह, बहुत बढ़िया वाह. आइडिया है. Amazing idea. शैतान ने कहा एक आइडिया करते हैं, The devil says, let do मैं this. लोगों Let's को do this. चंगा करूंगा. I will heal जब वो people परमेश्वर की वचन की घोषणा करते हैं, when they declare God's फिर word. वो स्टेज में आके यीशु की महिमा करेंगे. वाह, Then they'll क्या come to the आइडिया है. वाह. So the devil said, I will heal people when they will declare God's word. Then these people will come to the stage and glorify Jesus. फिर वो Amazing यीशु की idea. महिमा करेंगे. फिर वो परिवार यीशु मसीह पे विश्वास करने लग जाएंगे और उद्धार पालेंगे. वाह शैतान, क्या बढ़िया स्ट्रेटेजी है तुम्हारी. Then these people will start to believe in Jesus and this family will come to Jesus. Wow, Satan, amazing strategy. और वो कहते हैं, अरे चिन्ह चमत्कार तो दूसरे बाबाओं के यहाँ भी होते हैं. एक जगह दिखाओ जहां चिन्ह चमत्कार बाबाओं के यहाँ हो रहे हैं और व्यक्ति आके बोल रहा है मुझे यीशु मसीह ने चंगा कर दिया. They say, oh, these signs also happen at different places with Babas. But show me one place where someone is healed at a Baba's place and says, Jesus has healed me. कुछ नहीं कर सकते. We can do जितना nothing. मूर्ख उनका बाप है उतने ही मूर्ख वो भी हैं. As foolish their father is, so are they. आमीन. अब एक बंदर आके ना अगर एक शेर को ऐसे करता रहेगा, ऐसे करता रहेगा, ऐसे करता रहेगा, ऐसा करता रहेगा, If a monkey comes and keeps poking a lion, एक टाइम तो आएगा जब शेर दहाड़ेगा.
A time will come when the और lion सारे will roar. बंदर भागेंगे. Then all the monkeys will run away. Amen. और जब शेर दहाड़ेगा तो फिर अपनी स्ट्रेंथ में दहाड़ेगा. And when the lion will roar, he will roar in वो his बंदर की strength. तरह नहीं करेगा. He will not do it like the monkey. अपने आप को बचा के रखो. Save yourself. परमेश्वर का वचन अपने मुंह में रखो. Fill the word of God in your mouth. Keep it in your mouth. Amen. अब एक चीज आपको बहुत ही केवल आपके लिए नहीं. मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला था What did I tell you? कि ये केवल आपके लिए नहीं है, This is not just for you. है ना? बोला था ना किसके लिए है? Who is it for? आइजाया 59:21. यशाया 59 उसका 21. ओके, ध्यान से सुनना. ये carefully. यहोवा यह कहता है, Thus जो says the- वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है. As for me, says the Lord, this is my covenant with them, my spirit who is upon you. और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, ओहो. And my words which I have put in your mouth. फिर से परमेश्वर कह रहा है, मैंने अपने वचन कहां डाले हैं? तेरे मुंह में डाले हैं. अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से कभी ना हटेंगे. Shall not depart from your mouth, nor from the mouth of your descendants, nor from the mouth of your descendants. तो मैं ये घोषणा करना चाहता हूं I want to declare this. कि हम घोषणा करना तो रोकेंगे नहीं, मगर हमारे बच्चे भी घोषणा करेंगे और हमारे नाती पोते भी घोषणा करेंगे यीशु के नाम में. I want to declare this, that we will not stop making declarations, but our children will make declarations, and even our grandchildren will make declarations. और जितना शैतान हमें रोकने की कोशिश करेगा तो हम डबल कर देंगे उसको. And the more the devil tries to stop us, we will double making declarations. Amen. अगर आप FOLJ में बोए गए हो, If you ये are इंस्ट्रक्शन सुनो, डबल कर दो आज के बाद अपनी घोषणाओं को. If you are planted in FOLJ, hear this परमेश्वर के instruction. वचन को अपने मुंह में डालो और सुबह और शाम घोषणा करो परमेश्वर के वचन Double की. your instructions. Fill the word in your mouth. Declare it day and night. Amen. और ऐसे अनडिनाइबल साइंस एंड वंडर्स होंगे जिसको कोई ठुकरा नहीं सकेगा. Such undeniable signs and wonders will happen. No one will be able to negate them. तो वो मना नहीं कर सकेंगे ना. So तो they वो will बस not ये बोलेंगे अच्छा ये परमेश्वर नहीं कर रहा. They will not be able to deny them, so they'll say, "Oh, God is not doing this." हालेलुया. काफी अच्छी टीचिंग है कि परमेश्वर के वचन की घोषणा करके शैतान काम करता है. This is a very good teaching that by the declaration of God's word, the devil heals. हालेलुया. हालेलुया. वचन बोलने वाले, वचन घोषणा करने वाले मसीह बन जाओ. Be a believer who will declare God's word. ये नहीं कि केवल हमने करा था लास्ट फ्राइडे नाइट में करा था तो तलवार फिर पैनी नहीं रही. रोज करो, क्योंकि यीशु के मुंह से पैनी दो धारी तलवार निकल रही है. Don't let it be like I declared the word last Friday night and now I'm not using the sword. No, declare it daily because the sword is coming out of Jesus' mouth. हालेलुया. अब बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, Now the Bible says the word of God, which is a two-edged sword. ये वचन आता है डाइस्टोमा, यानी दो मुंह. This word is the word diastoma, which means two mouths. कैन यू पुट दैट? ये आप देख सकते हो ग्रीक में स्टोमा का मतलब क्या होता है? द माउथ. Stoma means जो मुंह है. मुंह. जो बाइबल कह रही है ये जो वचन है परमेश्वर का वो दो मुंह का है. दो मुंह. This word of God is two-mouthed. Let me just quickly send media team a picture. Okay, and guys, I want you to show this. Hallelujah. Man, एक हिस्ट्री कर रहा है परमेश्वर इस इंडिया में. God is creating a history in this nation of India. कि बाइबल हाथ से मुंह में आ रही है लोगों के. That the Bible is coming from out of people's hands into their mouths. हालेलुया. तलवार हाथ में होगी ना किसी के तो कोई छीन सकता है उससे. If the sword is in someone's hand, it can be snatched away. जब तलवार आपके मुंह से आ रही है ना, कोई नहीं छीन सकता उस But when तलवार the को. sword is coming out of your mouth, nobody can snatch it. Okay, so can you put that? I've sent them a picture.
सो स्टोमा क्या है? मुंह है। परमेश्वर का वचन दो मुंह के लिए बनाया गया है, ठीक है? The word of God is designed for two mouths. ओके, जब परमेश्वर बोलते हैं तो वो वचन पूरे कॉस्मोस में, पूरे ब्रह्मांड में उसके अंदर क्रिएट करने की ताकत है। हम क्रिएट नहीं करते, हम नहीं कह सकते, मैं नहीं कह सकता मुझे पाइनएप्पल पेस्ट्री, मैं घोषणा करता हूं मेरे सामने पाइनएप्पल पेस्ट्री आ जाए। ये नहीं सिखा रहे हम आपको। When God declares, His word reverberates in the entire cosmos. It has the creative power. I'm not telling you we create. I'm not saying say I declare for a pineapple pastry. We're not teaching that. कई लोग कहते हैं कि अच्छा ये घोषणा कर रहे हैं, अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो इसीलिए हम उसके वचन की घोषणा कर रहे हैं। The word of God is the will of God. So they say, what if it's not God's will that they're declaring, but it's not God's will? That's why we declare the word of God, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही उसकी इच्छा है। सांस लेते रहिए बीच बीच में। Keep on breathing. The word of God is the will of God. परमेश्वर का वचन उसकी इच्छा है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। Hear carefully. जब परमेश्वर बोलता है, When God speaks, the word is alive. Alive का मतलब जीवित है, वचन जीवित होता है। मरा नहीं है, जीवित It's not है। dead, जो it's परमेश्वर ने आदि से बोला वो आज भी जीवित है, पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा है, जीवित है। What God spoke from the beginning is still alive, reverberating across It is the universe. reverberating. उसके अंदर फिर से पैदा करने की शक्ति है। It has the power to create again. जो परमेश्वर ने मिट्टी बनाई The soil that the Lord made. आदम के समय से आज तक, उसी में बीज डाल रहे हो, उसी से फल खा रहे हो। At the time of Adam till today, you are sowing seeds and reaping a harvest till today, है कि नहीं है? isn't it? लोग किसान वहीं बीज बो रहा है, फिर फसल काट रहा है, फिर बीज बो रहा है, The फिर farmers are sowing in the same land, getting a उसमें harvest. Same क्रिएटिव land. ताकत है जो बार बार क्रिएट करती It है। has the power to create again and again. ऐसी परमेश्वर के वचन से सृष्टि बनी, उसमें क्रिएटिव ताकत है और वो जीवित है, तो वो अभी भी रिवर्बरेट कर रहा है पूरे ब्रह्मांड में। Just like that, the word of God has a creative power, and it created and it has the power to create again and again. It's reverberating across the cosmos. Jeremiah 1:12 God says I watch over my word to perform it. यिर्मयाह 1:12 परमेश्वर कहता है मैं अपने वचन को ध्यान धरकर अब परमेश्वर अपने वचन को ध्यान धरकर देख रहा है God is looking at his word carefully. कि मैं इसको परफॉर्म करूं, यानी इसको करूं। That I will do this, I will execute तो my word. सवाल ही आता है परमेश्वर आप करते क्यों नहीं हो? The question is, God, why don't you do your word? Why don't you परमेश्वर execute it? दूसरे मुंह का वेट कर रहा है। Because God is waiting for the second mouth. परमेश्वर दूसरे मुंह का वचन, उसने कहा उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, वो वचन में चंगाई घूम रही है। फिर जब दूसरा मुंह बोलता है यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, दो मुंह आ जाते हैं साथ में और परमेश्वर की सामर्थ रिलीज हो जाती है। His word has said we are healed by the stripes of Jesus, and when we declare by the stripes of Jesus I am healed, both the mouths come together to declare that word, and the power of God comes over it.